वन्दे परमेश्वरीं शारदा। Hello. So we are having Manjushri Sardesh Pandey ma'am for moderating this session. She is the head of the Department of English and IQAC coordinator as Arts Munle Dharmabhat Arts and Commerce College in Nagpur. She is a well-known poet, writer, editor, translator, teacher trainer. And I welcome ma'am for moderating this session. Ma'am, please continue. Thank you, Lal Krishna ji. A hearty welcome to all of you. Friends, we are going to be bilingual for the convenience of all participants. Honorable speakers for today's webinar, Dr. Rishabh Jain sir, Dr. Kuldeep ji Akhotri sir, all the members of Vidya Bharati Uchcha Shiksha Sansthan, Lal Krishna ji, Shri Anurag Singhal ji, and my dear academicians. On behalf of Vidya Bharati Uchcha Shiksha Sansthan, I extend a warm welcome to all of you. Today we are going to have a deliberation on the role of languages in school education, which would be helpful in collating suggestions for implementation of the new education policy 2020. Friends, language plays a very important role in human life. It is the light of mind. It shapes thoughts and emotions and it determines one's perception of reality. Language is the roadmap of a culture. It tells you where its people are coming from and where they are going. Language is the divine gift of God and finest asset of mankind. Language is a means of communication, but it builds economic relationships, friendships, and cultural ties too. It is a means for intellectual development. In this age of globalization, we are living in a multilingual world. India is a treasure house of languages, and more than 20,000 languages or dialects are spoken in India. It is said that you live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live only once. Knowledge of language is the doorway to wisdom. The new education policy 2020 lays special emphasis on multilingualism and the power of languages. It mentions that mother tongue should be the medium of instruction till standard 5. Three-language formula and bilingual mode of education is recommended. To have an in-depth deliberation on this topic, role of education in school education, role of languages in school education, we have two distinguished personalities, doyens from the field of Hindi with us. विद्या भारती द्वारा आमंत्रित हमारे आज के कार्यक्रम के दोनों वक्ता हैं हिंदी के जाने माने साहित्यकार, भाषाविद, दार्शनिक, जिन्होंने अपना जीवन हिंदी के लिए ही समर्पित किया है। इन महाभागों का परिचय करना मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर ऋषभ जैन जी का विस्तृत परिचय आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ। आप वर्तमान में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, भारत सरकार के द्वारा स्थापित केंद्रीय और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसर एवं निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। आपने भोपाल विश्वविद्यालय, बाद में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय व लखनऊ विश्वविद्यालय आदि में अध्यापन किया। आपने भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सलाहकार कंसल्टेंट के रूप में भी कार्य किया। आप अहिंसा वाणी, द वॉइस ऑफ अहिंसा, जैन सिद्धांत, अनेकांत आदि पत्रिकाओं में आप संपादक रह चुके हैं। आपने संपूर्ण विश्व और विश्व का विशेषकर अमेरिका एवं यूरोप के विभिन्न देशों की अनेक यात्राएं की एवं निरंतर व्याख्यान दिए। आपने समसामयिक
हिंदी प्रयोग कोश, भारतीय मंत्र विज्ञान, भारतीय भाषाओं व उनके भारतीय सांचे के व्याकरण के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित किया। आपने भारतीय भाषाओं को परिवर्धित रोमन में लिखे जाने के लिए जिनवाणी फॉन्ट का विकास किया। आप अनेक अकादमिक संस्थाओं के सदस्य हैं, जैसे भारतीय ज्ञानपीठ की पुरस्कार समिति सहित आदि अनेक समितियों के सदस्य, लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य, भारतीय अनुवाद परिषद के सदस्य आदि। आपको अनेक पुरस्कार एवं सम्मानों से अलंकृत किया गया है, जिनमें बाहुबलीय काव्य रचना पर उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी की ओर से संस्कृत साहित्य पुरस्कार, अनुवाद और मशीनी अनुवाद कृति के लिए भारतीय अनुवाद परिषद नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2001 की नाताली पुरस्कार, श्रुत संवर्धन पुरस्कार, आचार्य ज्ञान सागर पुरस्कार आदि। आपके ज्ञान एवं अभिरुचि के क्षेत्र हैं अनुवाद, कोश विज्ञान, व्याकरण संबंधी अध्ययन एवं अनुसंधान, प्रतीक विज्ञान संबंधी अध्ययन एवं अनुसंधान आदि। आपकी कुछ प्रमुख प्रकाशित कृतियां कालिदास, बाहुबलियम, त्रिमुनि व्याकरणम, भारतीय शब्द दर्शन, महावीर प्रकाशन का है ये, प्रतीक और प्रतीक विज्ञान आदि। इसके अतिरिक्त शताधिक शोध पत्र एवं आलेख विभिन्न शोध पत्रिकाओं व ग्रंथों में प्रकाशित हैं। It is my proud privilege to have such a great personality amidst us here today. I welcome you, sir. इसके पश्चात मैं हमारे दूसरे महाभाग डॉक्टर कुलदीप जी अग्निहोत्री का परिचय करती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में 20 अप्रैल 2015 को पदभार ग्रहण किया। इस विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व प्रोफेसर अग्निहोत्री पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे थे। प्रोफेसर अग्निहोत्री लगभग 4 दशकों से शिक्षा जगत में जुड़े रहे हैं। इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर्गत उन्होंने विभिन्न क्षमताओं में सेवाएं प्रदान की हैं, यथा निदेशक, क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र, HPU धर्मशाला, प्राचार्य बाबा बालक नाथ महाविद्यालय चकमोह और प्रवक्ता शिवालिक कॉलेज नया नंगल पंजाब। प्रोफेसर अग्निहोत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीठ HPU के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। वे नियमित स्तंभ लेखक हैं और अनेक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रायः लिखते रहे हैं। इन्होंने 18 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं। हाल के वर्षों में प्रकाशित पुस्तकें जम्मू कश्मीर की अनकही कहानी, जम्मू कश्मीर के जन नायक महाराजा हरि सिंह, जम्मू कश्मीर का विस्मृत अध्याय कुशोक बकुला रिम्पोचे और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर यात्रा के पद चिन्हों पाठकों एवं विचारों द्वारा काफी इनका ये सराहा गया है। उन्होंने 10 से भी अधिक देशों का भ्रमण किया है। चकमोह जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के निवासी प्रोफेसर अग्निहोत्री हिंदी और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं। वे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से आदि ग्रंथ आचार्य की उपाधि एवं PhD में सम्मानित हैं। मैं आप दोनों विद्वानों का स्वागत करती हूं और डॉक्टर कुलदीप जी अग्निहोत्री से निवेदन करती हूं कि वे अपना विषय प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मंजूश्री जी। जैन साहब का भी बहुत धन्यवाद। विद्या भारती का जो उच्च शिक्षा विभाग है, जहाँ संस्थान है, उन्होंने एक बड़े अच्छे विषय पर यह वार्ता आयोजित की है कि स्कूल एजुकेशन में भाषा की क्या महत्ता हो सकती है। और हमारे वक्त में तो स्कूल एजुकेशन का मतलब होता था कि जब 5 साल की उम्र हो जाए तो पहली कक्षा में एडमिशन मिलता था, तो स्कूल 5 साल से शुरू होता था। और आजकल स्कूल एजुकेशन का मामला शायद नई शिक्षा नीति में भी लिखा है कि 3 साल का जो बच्चा हो जाएगा वो स्कूल में या आंगनबाड़ी, उसका शब्द जो मर्जी कहिए, वहां पढ़ने के लिए जाएगा। और वैसे उससे पहले भी शायद 1 साल का ही जब बच्चा हो जाता है, जब 2 साल का होता है,
तो कहीं ना कहीं उसको स्कूल में या स्कूल के नाम से जो भी खुला हो उसमें दाखिल करवा दिया जाता है। तो भाषा की महत्ता जो है वो मैं समझता हूँ 1-2 साल से ही शुरू हो जाती है, स्कूल उसी का हिस्सा बनता है। मैं भाषा की महत्ता को एक और दृष्टिकोण से देखता हूँ। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको जो शब्द, जो ध्वनियां सुनाई देती हैं वो आसपास की ध्वनियां होती हैं। और जब थोड़ा सा समझने लायक होता है तो वो सबसे पहले जो शब्दों का उच्चारण करता है वही शब्द होते हैं जो उसकी माँ या उसके घर के या बाप या भाई या बहन या फिर पशु पक्षी भी जो शब्द जिस प्रकार से उच्चारित करते हैं तो वो उसको सीखता है। फिर धीरे धीरे वो चीजों को पहचानने की कोशिश करता है। घर में सेब पड़ा है तो माँ ने कहा ये सेब है, तो 3 बार वो सुनता है और उस सेब का इमेज उसके दिमाग में बन जाता है कि इस प्रकार का सेब है। तो इस उम्र में एक और बड़ी खासियत कहना चाहिए कि छोटी उम्र में जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है, सब कुछ जानने की जिज्ञासा। ये क्या है, ये क्या है, ये ऐसे कैसे होता है, ये चीज क्या है। कोई सामने पशु आता है तो ये क्या है, इसका नाम क्या है। फिर घर वाले बोलते हैं ये कुत्ता है तो कुत्ता इमेज बनता है, ये गाय है तो गाय का इमेज बनता है, ये पेड़ है तो पेड़ का इमेज बनता है। फिर पेड़ों की अलग अलग पहचान होती है, ये नीम का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, यानी हजारों लाखों ऐसी चीजें हैं। और बच्चे में जिज्ञासा इतनी ज्यादा होती है इस उम्र में, और उस जिज्ञासा की पूर्ति जो है वो मातृभाषा से, क्योंकि परिवार में वही भाषा बोली जाती है, वो चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कश्मीरी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, या फ्रांस वालों में फ्रेंच हो, जर्मन हो, कोई भी भाषा हो जो मदर टंग है, वो जिज्ञासा उसके माध्यम से ही शांत होती है। लेकिन हो क्या रहा है, जब 3 साल का बच्चा घर को छोड़कर स्कूल में दाखिल हो जाता है तो वो एक नए परिवेश में जाता है। यदि घर का परिवेश और स्कूल का परिवेश एक ही हो फिर तो जिज्ञासा को शांत करने में जाने और गति मिलेगी, वो और ज्यादा सीखेगा। लेकिन दुर्भाग्य से उन देशों में जो बड़े लंबे अरसे तक उपनिवेशवाद का शिकार रहे, मैं सभी देशों की बात नहीं करता, दूसरे देशों में तो ऐसा नहीं होगा शायद। जर्मनी में तो जो बच्चे स्कूल में जाते होंगे अपनी मातृभाषा में ही सीखते होंगे, फ्रांस में बच्चे जाते होंगे अपनी भाषा में ही सीखते होंगे, फ्रेंच में ही सीखते होंगे। लेकिन दुनिया के कुछ देश ऐसे दुर्भाग्यशाली देश रहे, दुर्भाग्यशाली मैं इसलिए कहता हूं कि सभी देश तो उपनिवेशवाद का शिकार नहीं हुए। जो दुनिया के देश उपनिवेशवाद का शिकार हो गए उन देशों में, अब उसका कारण क्या है वो विवाद में जाने का ना समय है ना वो विषय है। उन देशों में जिन लोगों ने देश को उपनिवेश बनाया था वो चले भी गए, लेकिन उनकी जो विरासत है, खास करके भाषा की विरासत, उपनिवेशवाद का शिकार देशों ने शासक देशों के भाषा की विरासत नहीं छोड़ी। रादर छोड़ने की बात दूर की, उसको और सख्ती से पकड़ लिया। उसका नुकसान देश के बच्चों को उठाना पड़ रहा है। बच्चा जब अपने 3 साल की उम्र में, जब उसकी आयु 3 साल की हो जाती है, जब वो स्कूल में जाता है तो वहां जो परिवेश है वो बिल्कुल अलग होता है। घर में वो एक नक्शा, एक चित्र देखकर जो उसको प्रत्यक्ष देखकर उसको सेब कहता है, लेकिन स्कूल में जब वो आता है तो वही जो चित्र है, वही जो चीज है, चाहे सामने वो सेब पड़ा भी हो, तब उसको कहा जाता है ये एप्पल है। तब उसके दिमाग में द्वंद्व उत्पन्न होता है कि घर से तो वो 3 साल से उसको सेब कह रहा है, बाहर जो गाय घूम रही है उसको गाय कह रहा है, लेकिन स्कूल में एक बिल्कुल अलग परिवेश हो जाता है। उस परिवेश के कारण उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। कई बार तो क्या होता है कि जो बच्चा नए परिवेश में इतनी जल्दी से ढल नहीं पाता, उसकी जिज्ञासा जो वो पूछकर शांत करना चाहता है, वो अपनी जिज्ञासा को मन के अंदर ही दबाना शुरू कर देता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, मुझे लगता है उदाहरण से बात और स्पष्ट हो जाएगी। हमारे पंजाब में पंजाबी भाषा जो, जैसे हिंदी की स्क्रिप्ट जो है, लिपि देवनागरी है, तो पंजाबी की जो लिपि है वो गुरमुखी है। हिंदी में ऊ होता है, ऊ है, बड़ा ऊ है, तो इसी प्रकार पंजाबी में ऊड़ा और बड़ा ऊड़ा है।
तो किसी ने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला करा दिया। तो मिरासी जाति का व्यक्ति था। मिरासी जाति के लोग ज्यादा पढ़ते नहीं, अब तो सब पाकिस्तान में चले गए, लेकिन उन दिनों पाकिस्तान नहीं बना था। उसने अब सोचा कि हमारा बच्चा भी पढ़ ले तो कोई बुरी बात नहीं है। उसने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला करवा दिया, और जो पहली कक्षा का, पंजाब में इसको कायदा कहते हैं, जब पहली क्लास की किताब कह लीजिए, जो भाषा की किताब थी, वो उसको खरीद कर दे दिया और स्कूल में दाखिला करवाया। तो 10-15 दिन बाद उसने सोचा मास्टर जी से जाकर बात करूं कि भाई बच्चा पढ़ता भी है, जब ऐसे ही है। तो वो गया मास्टर के पास। उसने कहा मास्टर जी मैं अपना भुजंगी दाखिल करवा गया था। भुजंगी बेटे को कहते हैं कि मैं अपने बेटे को दाखिल करवा गया, तो कुछ पढ़ता है, या रुचि लेता है या नहीं लेता। मास्टर ने कहा अभी तुम्हारे सामने बुला ही देता हूं, तुम्हारे सामने ही पता चल जाएगा। तो वो लेकर आया अपनी किताब। अब किताब में जैसे हिंदी की किताब में लिखा होता है कि क कबूतर और स सेब और ग गमला, ऐसे जिस प्रकार से, तो उसमें जो पहला ही ऊ शब्द था, जिसको पंजाबी में ऊड़ा कहते हैं, ऊड़ा लिखा हुआ था, और साथ ऊंट की फोटो चित्र बनाया हुआ था। जैसे हिंदी में ऊ से ऊंट और बड़े ऊ से ऊंट और ऊंट का फोटो था। अब जब उसने, मास्टर ने कहा बच्चे को जरा पढ़कर सुनाओ, तो बच्चे ने ऊ तो पढ़ दिया बड़ा, लेकिन आगे फोटो बना हुआ था। अब उस इलाके में ऊंट को बोता कहते थे, अभी भी बोता ही कहते हैं। तो बच्चे ने ऊ पढ़ने के बाद कहा ऊ बोता, क्योंकि ऊ उसने समझ लिया था, आगे फोटो दिखाई दे रही थी, वो बोते की फोटो थी, तो उसने कहा ऊ बोता। मास्टर ने एक उसके थप्पड़ लगाया कि तुम्हें इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या है, बोलो दोबारा। उसने फिर कहा ऊ बोता। ऊ से ऊंट कहना था उसको, लेकिन अब फोटो उसके आगे बनी हुई थी, और घर में ऊंट को बोता ही कहते थे, पूरे गांव में ऊंट को बोता कहते थे। उसने फिर दूसरी बार, और रोने भी लगा कि ऊ बोता। उसने फिर एक जड़ दी कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं और तुम्हारे पिता पूछने के लिए आए, मेरी बदनामी हो गई। जब उसने तीसरी बार भी ऊ बोता कहा, तो अब मरासी भी देख रहा था। मरासी को समझ नहीं आ रहा था कि दिखाई मुझे भी बोता ही दे रहा है, और बेटा पढ़ भी ठीक ही रहा है, बोते को बोता ही कह रहा तो और क्या कहेगा। उसको लगा लेकिन मास्टर मार क्यों रहा है। तो फिर उसको लगा मास्टर तो आखिर मास्टर है भाई, पढ़ा लिखा है, और गलत तो नहीं मार रहा होगा, इसलिए बेटा गलत ही पढ़ रहा होगा। अब समझ मरासी को भी नहीं आ रहा था, फोटो बोते की है और बेटा भी बोता ही कह रहा है, मास्टर फिर पीट रहा है। जब उसने फिर, मास्टर ने चौथी बार कहा कि दोबारा सुनाओ, तो उसने फिर कहा बोता। तो मास्टर ने तो अभी थप्पड़ लगाना ही था, मिरासी ने जोर से थप्पड़ लगा दिया। कहता बेवकूफ, 4 बार मास्टर तुम्हें मार चुका है, ध्यान से देख लो, शायद बोता ना हो बोती हो। बोते का जो स्त्रीलिंग है, ऊंट का जैसे स्त्रीलिंग ऊंटनी है, तो बोते का स्त्रीलिंग बोती है। तो कहता ध्यान से देखो, शायद बोती हो। कहता मास्टर वैसे थोड़ा मार रहा है। अब देखिए, बच्चा घर के परिवेश से निकलकर जिस परिवेश में गया है, बेसिक इश्यू ये है कि क्या हमारे स्कूलों का परिवेश बाहर के परिवेश से अलग होना चाहिए या वही होना चाहिए। स्कूल हमारी नॉलेज को सप्लीमेंट करने के लिए है, या हमें बिल्कुल एक अननेचुरल परिवेश में कैद करके नए सिरे से सिखाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसमें स्कूली शिक्षा में भाषा की महत्ता रेखांकित होती है। दूसरी एक बात और ध्यान में मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे। भाई, यदि स्कूल का जो परिवेश है वो बाहर के परिवेश से अलग है, तो एक ही चीज को स्टूडेंट जब स्कूल में 5 घंटे रहता है तो बिल्कुल अलग वातावरण है, बाहर जाता है तो बिल्कुल अलग वातावरण है। तो उसकी देखिए, जैसे अभी मंजूश्री शायद कह रही थी कि जो भाषा है वो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा साधन है, संवाद का साधन है, भाषा सीखने का बहुत बड़ा माध्यम है, भाषा ज्ञान तक पहुंचने की कुंजी है। और जो बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, हम उसको 2 परस्पर विरोधी परिवेशों में डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो स्कूल का परिवेश है, जिसमें एक नई भाषा सिखाई जा रही, मैं ऐसा नहीं कहता भाषाएं तो भाई 50 सीखनी चाहिए, जितनी मंजूश्री ने भी अभी कहा कि जितनी ज्यादा भाषाएं आई उतनी अच्छी बात है, लेकिन जो ज्यादा भाषाएं आए उसका एक और ध्यान भी रखना चाहिए। 5 साल का बच्चा है, आप उसको खाने के लिए ऐसी चीज दे दो जिसको वो पचा ना पाए, तो इसका अर्थ है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को गड़बड़ कर देगी।
जब 15 साल का होगा तो वो चीज को अच्छी तरह पचा सकता है। सीखने का जो प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया भी एक नेचुरल प्रक्रिया है। मातृभाषा में जो आदमी सीखता है वो विदेशी भाषा में, खास करके अभी स्कूली शिक्षा का जैसे कहा कि नई शिक्षा नीति में शायद 3 साल से लेकर 8 साल तक जो है वो स्कूली शिक्षा, जब बाल अवस्था कहिए, नाम उसका वट एवर द नेम में भी, मैं उसकी चर्चा नहीं करता। इन 5-6 सालों में जो एक प्रकार से पकने के साल होते हैं या नींव के साल होते हैं, उन सालों में हम दूसरी एक अननेचुरल भाषा सिखाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं हमारे बच्चों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। खास करके बाल अवस्था में और किशोर अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण रोल ही भाषा का है। सीखने का एक केवल वही माध्यम है। और इसको मैं और एक उदाहरण से ही भाई बात करना चाहूंगा, उदाहरण से बात और स्पष्ट हो जाएगी। हमारे स्कूल के बच्चे आते हैं, हमारा पर्पस क्या उनको स्कूल में लाने का, उनको ज्ञान देना, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाना, ताकि उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनको शांत करना। और सबसे बड़ी बात क्या कि मन में प्रश्न उठे इसको भी थोड़ा सा तेज करना, ज्यादा तो नहीं। वैसे तो बच्चे के मन में वैसे ही हजारों प्रश्न उठते रहते हैं, लेकिन कहीं ना उठ रहे हैं तो उसको भी त्वरित करना कि उठे, प्रश्न उठे और उनका शमन करना। प्रश्न जो उठेंगे वो आपके आसपास के वातावरण को देखकर ही उठेंगे, और कैसे उठेंगे। भाई मैं मान लीजिए हिंदुस्तान में बैठा हूं तो मेरे मन में ये थोड़ा प्रश्न उठेगा कि न्यूयॉर्क में जो हडसन नदी बहती है वो कहां है। मेरे मन में तो प्रश्न ये उठेगा कि हमारे गांव में जो झील है, जो पानी की स्रोत है, ये पानी कहां से आता है। क्योंकि बचपन में जो प्रश्न उठते हैं वो आसपास के माहौल से, आसपास के वातावरण से उठते हैं, और उन प्रश्नों का शमन भी आसपास की भाषा के माध्यम से किया जा सकता है। और स्कूल में क्या हो रहा है कि प्रश्न उन स्थानों के उठाए जा रहे हैं जिन स्थानों का हमारे साथ, खास करके बच्चे के साथ दूर दूर का रिश्ता नहीं होता। और पहले उन प्रश्नों को उठाया जाता है, फिर उन प्रश्नों का उत्तर उस भाषा में दिया जाता है जिस भाषा से बच्चे का कोई रिश्ता नहीं होता। इससे क्या होता है कि बच्चे का स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो जाता है। यदि जितने हम लोग जुड़े हुए हैं, यदि उनमें से कुछ लोग किसान भी हैं तो वो ज्यादा मेरे उदाहरण को समझ जाएंगे। हमारे पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में जब किसी के गाय के बच्चा होता है, यदि वो गाय स्त्रीलिंग गाय ना होकर बच्चा हो जाता है, जिसको बच्चा पंजाबी में बच्चा कहते हैं, अब हिंदी में क्या कहते हैं भाई मेरे ध्यान में नहीं है, यदि वो होता है तो किसान को लगता है जी खेती के काम आएगा। अच्छा, अब खेती के काम आएगा तो उसको उसके लायक भी बनाना है कि खेती के काम आए। तो लेकिन यदि उसको कुछ नहीं उस ढंग से कंट्रोल करते तो वो सांड बन जाता है, फिर किसी काम नहीं आता। फिर वो सांड खेती के काम तो नहीं कम से कम आ सकता। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जब वो छोटी उम्र का ही होता है, अभी 5-6 महीने का होता है, तो उसको एक प्रक्रिया से, जिसको पंजाबी में कहते हैं खस्सी, कर देते हैं। जब वो खस्सी हो जाता है वो जिंदगी भर सांड नहीं फिर बनता, वो बैल रहता है और किसान के खेत में घूम घूम कर खेती करता रहता है। बच्चे जो स्कूल में आते हैं, यदि हम उनको विदेशी भाषा के इंजेक्शन से बचपन में ही खस्सी कर देंगे तो आप समझ लीजिए वो ज्ञान के शिखर पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वो उसी छोटी सी कोठरी में घूमते रहेंगे और छोटी छोटी चीजें जो आसपास की, क्योंकि ना वो मातृभाषा में निष्णात हो पाएंगे ना विदेशी भाषा में निष्णात हो पाएंगे। तो इसलिए विदेशी भाषा ने हमारे स्कूल के बच्चों का क्या, हमारे देश के बच्चों का, चाहे वो तमिल भाषी हो, बांग्ला भाषी हो, पंजाबी भाषी हो, और चाहे वो कश्मीरी भाषी हो, उनको छोटी उम्र में ही विदेशी भाषा का इंजेक्शन देकर खस्सी कर दिया है। अब उनसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ना वो सही ढंग से चिंतन कर सकते हैं, ना उनके दिमाग में बेसिक आइडियाज आ सकते। एक बात और ध्यान में रखिए, ये जो दुनिया भर में प्रगति हुई है ना, ज्ञान में, विज्ञान में, साइंस में, ये प्रगति कैसे होती है कि किसी की खोपड़ी में कोई बेसिक आइडिया आ जाता है, फिर वो बेसिक आइडिया के पीछे भागता है उसको सॉल्व करने के लिए, फिर नए नए रहस्य पता लग जाते हैं उसको, प्रकृति के अनेक रहस्यों को अनावृत कर देता है। लेकिन यदि मैंने बच्चों को बचपन में ही खस्सी कर दिया
तो मुझे 100% गारंटी है कि अब उनकी खोपड़ी में बेसिक आइडियाज नहीं आएंगे। जो कम वक्त गीत गाता है बा बा ब्लैक शीप, उसने कभी जिंदगी में शीप नहीं देखी, और जो शीप या भेड़ को चराता है उसने कभी बा बा ब्लैक शीप नहीं सुनी। तो इसलिए देखिए, बच्चों के विकास के लिए उनकी अपनी मातृभाषा में शिक्षा देना बहुत जरूरी है। स्कूल में खास करके मैं तो समझता हूं ये कंपलसरी होना चाहिए। अभी तो सरकार ने शायद नई शिक्षा नीति में यही कहा है कि कंपलसरी है, लेकिन पूरे देश भर में इसको सख्ती से लागू भी करना चाहिए। यदि बच्चे अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करेंगे, बड़े होकर थोड़ी बड़ी उम्र हो जाती है, 15-20 साल के हो जाते हैं, 15 साल के हो जाते हैं, तो जितनी मर्जी भाषाएं सीखें, कोई नुकसान नहीं होता, ज्यादा भाषाएं सीखनी चाहिए। लेकिन जिस उम्र में, देखिए, जिस उम्र में बच्चे को माँ के दूध की जरूरत है, उस उम्र में आप उनको वो दूध, आजकल डिब्बों में आते हैं ना कई प्रकार के बंद दूध आते हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा नाम उसके ध्यान में नहीं है, और टीवी पर ऐड आती रहती है कि ये दूध पीजिए, ये तो माँ के दूध को भी मात करता है, माँ का दूध छोड़ दीजिए, ये हमारा दूध पीजिए बंद डिब्बे में, तो आप बहुत गुणी ज्ञानी बन जाएंगे। जो लाभ माँ के दूध से होता है वो बंद डिब्बे के दूध से नहीं होता। जो जिज्ञासा, जो उन्नति, जो ज्ञान छोटी उम्र में मातृभाषा से सीखा जा सकता है, वो दूसरी भाषा में नहीं सीखा जा सकता है। मैं फिर अपनी बात थोड़ा इसको समेटने की कोशिश करूंगा। जैन साहब ने बोलना है, और जैन साहब विद्वान आदमी है भाई, तत्व की बात करेंगे। मैं तो जिसको कहना चाहिए घूमते फिरते जो चीजें ध्यान में आती हैं अनुभव को ही शेयर कर रहा हूं। मैं एक छोटा सा अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं अपने बहुत लोगों से बात करता रहता हूं, भाई मुझे एक बार बताओ, आप दुनिया भर को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते रहते हो, पता नहीं क्या क्या, बॉटनी, जियोलॉजी, क्योंकि बाहर के देशों में आप जाए ना, वहां के प्रॉस्पेक्टस उठाइए, हर 7वां 8वां प्रोफेसर इंडियन ही होगा, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। मैं क्या, आप लोग भाई बड़े सबको फिजिक्स पढ़ाते हो, आपको नोबेल पुरस्कार वगैरह कभी नहीं मिलता? तो वो सब पट्टे दूसरे ही ले जाते हैं, कोई जर्मन का है, कोई फ्रांस का है, कोई इटली का है, और जिनकी पॉपुलेशन 4 देश तो आपके नागपुर सिटी में आ जाएंगे, यानी जिनकी पॉपुलेशन कुछ नहीं, और वो नोबेल पुरस्कार लेकर घूम रहे हैं, और आप फिजिक्स केमिस्ट्री सारी दुनिया को पढ़ा रहे हो, नोबेल पुरस्कार आपके पल्ले नहीं पड़ता, हाथ नहीं आता। तो एक दो मित्रों ने मुझे कहा, अरे अग्निहोत्री जी, उसका कारण दूसरा है। मैंने कहा क्या है? कहते हम तो भाई जो पढ़ाते हैं हमने सीख लिया, आगे पढ़ा दिया। ये नोबेल पुरस्कार बेसिक आइडिया से आते हैं, खोपड़ी में बेसिक आइडिया आना चाहिए, और बेसिक आइडिया को फिर आगे जब आदमी उसको पीछा उसका करता है तो नए नेचर के सीक्रेट प्रकट होते हैं, फिर उससे नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो मैं क्या, आपकी खोपड़ी में बेसिक आइडिया क्यों नहीं आते भाई? उसने कहा देखिए, बेसिक आइडिया आने की उम्र होती है 5 साल से लेकर 20-25 साल तक, उसके बाद फिर बेसिक आइडिया थोड़ा आएंगे। अब भाई मेरे और जैन साहब के दिमाग में बेसिक आइडिया थोड़ा आएंगे। मुझे तो यही लगेगा कि बीसी की टर्म पूरी हो रही है, सेकंड टर्म कैसे हथियानी है उसका कोई रास्ता निकाला जाए। तो मेरे मन में इनकम टैक्स का वो भरना है, क्या नाम, स्लैब भरनी है, कोई ठीक ढंग का सीए मिल जाए तो इनकम टैक्स बचा दे और मेरा पैसा बच जाए। मेरे मन में तो यही आइडियाज आएंगे। जो 5 साल की उम्र से लेकर 3-4 साल की उम्र से लेकर 20-25 साल तक बेसिक आइडियाज आते हैं। लेकिन वो बेसिक आइडियाज कैसे आते हैं, मैं एक छोटे से उदाहरण से बात करके भाई अपनी बात खत्म कर दूंगा, बहुत ज्यादा लंबा जाने का समय नहीं है। मैं जे अभी तो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति बन गया हूँ, तो अब मुझे यूनिवर्सिटी वाले बुलाते रहते हैं कि अग्निहोत्री आप आइए हमारे यहाँ, भाषण दीजिए, ऐसा करिए वैसा करिए। तो जिन दिनों मैं स्कूल एजुकेशन बोर्ड में वाइस चेयरमैन था, अभी बताया ना मंजूश्री ने कि उससे पहले मैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में वाइस चेयरमैन था, तब यूनिवर्सिटी वाले तो नहीं बुलाते थे, स्कूल वाले बुलाया करते थे। यूनिवर्सिटी वाले तो बुरा मानते थे कि भाई स्कूल एजुकेशन बोर्ड का आदमी, स्कूल वाले को हम यूनिवर्सिटी में बुलाएं। हमारे यहाँ ये भी रहता है ना कि भाई जो स्कूल वाला है वो यूनिवर्सिटी में कैसे आएगा, जहाँ ज्ञान ना ज्ञान का तो मामला ही नहीं है, उसका बैठा कहाँ है। तो उन दिनों मुझे स्कूल वाले बुला लिया करते थे। तो मैं नंगल में शिवालय कॉलेज में लेक्चर रहा हूँ, तो मेरे एक स्टूडेंट का फोन आया, उसने कहा गुरुजी पता चला आप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में वाइस चेयरमैन बन गए हो। मैं कहा भाई बन गया हूँ, बताओ। कहते गुरुजी आप तो चले गए थे जहाँ से कॉलेज से, तो उसके बाद आपने हमें पढ़ाया था। मैं कहा अच्छी बात है भाई। कहता फिर नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन मैंने फिर अपने गांव में ही एक स्कूल खोल लिया है छोटा सा, तो मुझे पता चला गुरुजी वाइस चेयरमैन बन गए, तो आप हमारे स्कूल में आइए। कहता है
तो मैंने कहा बेटे ऐसा है, 25-30 साल से कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता रहा हूँ, तो स्कूल के बच्चों के साथ जाकर क्या भाषण करूंगा, और अब आइडिया भी नहीं है, तो इसलिए रहने दो। उसने कहा गुरुजी आप भाषण को छोड़ो, आप आ जाना, एक बैनर लगा लेंगे, एक फोटो खींच लेंगे, तो कम से कम इवेंट हो जाएगा कि मेरे स्कूल में वाइस चेयरमैन आया है। मैं कहा भाई ठीक है, तुम्हारा इससे गुजारा होता है तो मुझे क्या दिक्कत है। उसका स्कूल ये जो नंगल है ना, भाखड़ा नंगल, आपने नाम तो सुना ही होगा, ये पंजाब और हिमाचल की बिल्कुल सीमा पर है, तो पहाड़ी इलाका है, रिमोट एरिया है, तो बैकवर्ड एरिया है। उसने बेचारे ने अपने गांव में स्कूल खोला हुआ था छोटा सा, तो मैं गया वहां, सरकारी गाड़ी थी तो जाने में दिक्कत तो कोई नहीं थी, मैं गया वहां, तो वो लग गया बेचारा, किसी फोटोग्राफर को बुला रहा है, सीडी ला रहा है बैनर लगाने के लिए। मैंने कहा भाई तुम ऐसा करो, अपने 9वीं 10वीं के जो बच्चे हैं, तो जो 10 15 20 है उनको बिठा दो, मैं उनसे गपशप करता रहूं तब तक। उसने बिठा दिए, दरी डाली और उसमें बिठा दिए 20-25 बच्चे 9वीं 10वीं के। तो मैंने उनसे वैसे ही बच्चों से कि बेटा कोई पूछो प्रश्न आपके मन में आता हो, कोई दिमाग में। मैं 1 मिनट जो जब भाई मातृभाषा की बात होती है तो हिंदुस्तान में कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। मैं थोड़ा इसको चुप करा कराता हूँ 1 मिनट में। तो मैंने वैसे ही पूछना शुरू किया कि भाई पूछो प्रश्न, ऐसे 5-7 बार कहा, तो एक लड़का थोड़ा हिलने लगा, मुझे लगा प्रश्न पूछना चाहता है। जब वो अभी बेचारा पूरी तरह खड़ा भी नहीं हुआ था तब तक हेडमास्टर भी आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया, तो उसने उसको उठते हुए देखा, कहता तुम फिर खड़े होने की कोशिश कर रहे हो। तो ये कहते गुरुजी ये बिल्कुल ऐसा बेकार लड़का है, सिलेबस की किताब बिल्कुल नहीं पढ़ता और ऊट पटांग बहुत पूछता रहता है, मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछता रहता है, कहता, और इतना गरीब है कि इसके फादर के पास एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे, उसने मेरे पैर पकड़े तब मैंने इसको दाखिल कर लिया। और सुबह उठकर बकरी और भेड़ चराने के लिए जाता है जंगल में, और 2 घंटे बकरी भेड़ चराकर सीधा यहां आ जाता है। तो वो लड़का बेचारा गरीब तो था ही, उसमें कोई दो राय नहीं, कपड़े भी उसके वैसे ही थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, अब इसके मन में प्रश्न है तो पूछने दो। खैर वो लड़का तो बेचारा बहुत सहम गया था प्रिंसिपल की बात सुनकर, लेकिन मैंने फिर उसको हल्लाशेरी दी और थोड़ा उत्साह दिया, तो वो खड़ा हो गया। मैं कहा पूछो बेटे क्या प्रश्न पूछते हो। कहते सर मेरे दिमाग में कई दिनों से एक प्रश्न घूम रहा है, यानी जिज्ञासा। मैंने कहा क्या। कहता जिस कमरे में हमारी क्लास लगती है वहां एक छिपकली घूमती रहती है। मैं क्या फिर बेटे। कहते सर एक दिन मैंने देखा छिपकली की पूंछ कट गई थी। अब थोड़ा सा वैसे मुझे भी शक हुआ, मैं क्या शरारती लगता है जी, इसने प्रश्न क्या पूछा कि छिपकली की पूंछ कट गई थी, इससे मेरा क्या लेना देना है। तो मैंने कहा बेटे फिर तुम पूछना क्या चाहते हो, मुझसे क्या पूछना चाहते हो। कहते सर 7-8 दिन बाद देखा छिपकली की पूंछ दोबारा आ गई थी। ये दीवारों पर छिपकली घूमती रहती है घरों में, उनकी पूंछ कट जाती तो 7-8 दिन बाद दोबारा आ जाती है। मैं कहा बेटे तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। कहता सर मेरे पिताजी की उंगली कट गई थी, वो साल हो गया, 1 वर्ष हो गया, वो दोबारा नहीं आई। देखो लड़के हंसने लगे, प्रिंसिपल ने तो डांटा उसको बुरी तरह। लेकिन देखिए प्रिय मित्रों एक बात ध्यान में रखिए, आज दुनिया की प्रयोगशालाओं में करोड़ों अरबों रुपए इस बात पर खर्च हो रहे हैं, इस अनुसंधान पर खर्च हो रहे हैं कि छिपकली की पूंछ में ऐसी क्या बात है छिपकली के भीतर जो उसका एक अंग कटता है तो रीजनरेट हो जाता है। आदमी में ऐसी कौन सी चीज नहीं है कि उसका अंग कटता है तो रीजनरेट क्यों नहीं होता। दिस इज कॉल्ड बेसिक आइडिया। छिपकलियां तो भाई मैंने भी, मुझे भी सारी उम्र हो गई छिपकलियां देखते हुए दीवारों पर, लेकिन मेरे दिमाग में ये कभी बात नहीं आई। तो दिस इज कॉल्ड बेसिक आइडिया। बस एक बात ध्यान में रखिए, बेसिक आइडिया सदा अपनी मातृभाषा में आते हैं, विदेशी भाषा में बेसिक आइडिया नहीं आते। और जिस देश के बच्चों के दिमाग में बेसिक आइडियाज आते हैं वो देश तरक्की करता है। जिस देश के बच्चों के दिमाग में बेसिक आइडियाज नहीं आते वो देश तरक्की नहीं करता। और हिंदुस्तान जब विश्व गुरु था तब हमारे जहां बेसिक आइडियाज आते थे क्योंकि अपने परिवेश में पढ़ाया लिखाया जाता था। और विदेशी शासकों ने स्कूल के परिवेश को भारत के परिवेश से अलग कर दिया है। और जिस उम्र में बेसिक आइडियाज आते हैं, जैसे मैंने कहा ना अभी, जिस उम्र में बेसिक आइडियाज आते हैं उस उम्र में हम अपने बैलों को खस्सी कर देते हैं।
फिर उनसे कोई खतरा नहीं है। तो इसलिए स्कूल में मातृभाषा का क्या महत्व है, मुझे लगता है यानी जिस प्रकार बच्चे के लिए मां के दूध का महत्व है, उसी प्रकार स्कूली शिक्षा में मातृभाषा का महत्व है। और नई शिक्षा नीति उस दिशा में भगीरथ प्रयास करने के जा रही है। मुझे लगता है इसके रिजल्ट आएंगे, इसके परिणाम 100% आएंगे। लेकिन बस एक बात ध्यान में रखिए, यदि स्कूली शिक्षा में मातृभाषा आ गई तो एक खास सेक्शन के सेल्फ इंटरेस्ट पर खतरा हो जाएगा। क्योंकि एक सेक्शन ऐसा है जिसका सारा काम ही विदेशी भाषा पर आधारित है। विदेशी भाषा पर आधारित मैं ये नहीं कहता कि दफ्तरों में काम विदेशी भाषा में होता है, स्कूल अंग्रेजी, अपने यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाता है, दिस इज नॉट इशू। एक सेक्शन ऐसा है जिसके पास ज्ञान नहीं है, केवल भाषा है। और हिंदुस्तान के बच्चों के पास ज्ञान है, भाषा नहीं है। उनके पास अपनी भाषा है, लेकिन इस देश में उपनिवेशवाद के बाद सिस्टम ऐसा डेवलप हो गया है कि ज्ञान की कीमत नहीं है, भाषा की कीमत रह गई है। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द भाषा का कंबल लिपटा हुआ देखते हैं, विदेशी भाषा का, हम आतंकित हो जाते हैं। कंबल बड़ा सुंदर है, जब वो कंबल उतरेगा तो लोगों को पता चल जाएगा इस सुंदर कंबल के अंदर जो बैठा है वो तो ज्ञानहीन है, उसकी कुल पूंजी विदेशी भाषा ही थी। और जब हिंदुस्तान में मातृभाषा स्कूल में आ जाएंगी, करोड़ों 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 की संख्या में ऐसे लोग आगे आएंगे जिनके पास ज्ञान होगा। और प्रिय मित्रों, ये शुरुआत स्कूल से ही होगी, ये शुरुआत यूनिवर्सिटी से नहीं हो सकती, ये शुरुआत स्कूल से होगी। नई शिक्षा नीति में ये पहल की गई है, लेकिन बस एक बात ध्यान में रखिए, एक खास सेक्शन इसका विरोध मरते दम तक करेगा। यदि हम इस बार लड़ाई में जीत गए तो हिंदुस्तान विश्वगुरु बन जाएगा। यदि इस लड़ाई में हम हार गए तो आप समझ लीजिए कि हम 100 साल और पीछे चले जाएंगे। ऐसा अवसर किसी भी देश की हिस्ट्री में ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। ये अब मैं समझता हूं ये ईश्वरी कृपा से ऐसा अवसर आया है और इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। विद्या भारती तो खैर इस काम में लगा ही हुआ है और लंबे अरसे से लगा हुआ है। और मुझे लगता है जो नई शिक्षा नीति जो है, इसमें कहीं ना कहीं विद्या भारती के इन प्रयत्नों का भी उसमें कहीं ना कहीं उसके कारण जो हुआ है, 50 प्रकार के प्रयत्नों का जो समन्वित परिणाम निकला है, इस फल को हमें नष्ट नहीं होने देना है। ये जो बहुत गोल्डन एप्पल आया है एक प्रकार से हमारे हाथ में, शिक्षा नीति और स्कूल में मातृभाषा, ये गोल्डन एप्पल है। लोग इसको नष्ट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमें इसको नष्ट नहीं होना देना। आपने बड़े अच्छे विषय पर भाई ये विचार विमर्श रखा है, सब लोग इससे जुड़े हैं, मुझे लगता है इससे लाभान्वित होंगे। मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करता हूं, जैन साहब को नमस्कार करता हूं, मंजूश्री को भी नमस्कार करता हूं, जितने मित्र सब जुड़े हैं उन सभी का आभार, धन्यवाद। धन्यवाद कुलदीप जी, आपने भाषा की संकल्पना को बड़े ही सरलता से समझाया। मातृभाषा का महत्व बहुत ही खूबसूरती से उदाहरण देके हमें समझाया। काफी सारे सुझाव आपने दिए और हमारे श्रोता वर्ग के मन में जरूर कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए होंगे। दोनों ही भाषणों के बाद प्रश्न उत्तर सेशन होगा। सभी सहभागियों से निवेदन है कि आपके प्रश्न तैयार रखें और उनको चैट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। हम ऋषभ जैन जी के उद्बोधन के बाद हम प्रश्न उत्तर सेशन शुरू करेंगे। अब मैं डॉक्टर ऋषभ जैन जी को इस विषय पर उद्बोधन करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर ऋषभ जैन जी, हम एक शेयर कर सकेंगे क्या? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आपको स्क्रीन शेयर करना है ना? जी हाँ जी।
ये तब तक प्रारंभ करें। दो ही मिनट में आपको परमिशन दे रहे हैं। या बाद में एक साथ करें। हो गया, हो गया। यू आर नाउ प्रेजेंट। आ गया ये शेयर पे आ गया। करें प्रारंभ। सर्व विद्या प्रकाशिनी बोधिनी परमार्थिनी सुर नर मुनिहन्मोहिनी ज्ञान वीणा वादिनी शिवानी कल्याणी संवितरिणी सुखदायिनी त्रिलोकदाहदमनी दहतु भूतमां शारदा जगतमां शारदा भवतमां शारदा। विद्या भारती के समस्त पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम की इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर मंजुश्री सरदेश पांडे जी, आदरणीय प्रोफेसर अग्निहोत्री जी और आप सभी मित्रों। प्रोफेसर अग्निहोत्री जी ने भाषा की भूमिका के बारे में और खास करके बच्चों में क्यों मातृभाषा का संस्कार किया जाना चाहिए, इसकी बात बड़े सबल तर्कों में और बड़ी सहजता के साथ रखी। मेरी इस व्याख्यान के भूमिका के रूप में मेरी चर्चा बहन डॉक्टर मंजुश्री सरदेश पांडे जी से जब हो रही थी तो उन्होंने कुछ सवाल रखे कि ये जो व्याख्यान माला है इसका प्रयोजन प्रमुखतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन से लेकर है और उस पर हम कैसे बढ़ सकें, इस दृष्टि से अगर बात होगी तो शायद ज्यादा काम की होगी। तो इन दोनों दृष्टियों से एक विद्यालय में या विद्यालयीन शिक्षा में भाषा की क्या भूमिका है और मातृभाषा की क्या भूमिका है, इस दृष्टि से और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में उसे हम कैसे समृद्ध करें और कैसे लागू करें, इस दृष्टि से हम आज आपसे कुछ बात करेंगे। इस बातचीत में हम दो बिंदुओं को लेकर बात प्रारंभ करते हैं।
हम सब मानते हैं कि शिक्षा का काम क्या है। शिक्षा का काम संस्कारित करना है। तो फिर दूसरा सवाल कि भाषा का काम क्या है? क्या भाषा के बिना शिक्षा चल सकती है, या समुचित भाषा के प्रयोग के बिना समुचित शिक्षा दी जा सकती है? ये एक दूसरा सवाल। मेरी तो मान्यता है कि भाषाएं हैं तो संसार है, भाषाएं नहीं तो संसार भी नहीं। क्यों? क्योंकि संसार में दो ही चीजें हैं, या तो वस्तुएं हैं या कुछ घटनाएं हैं, कुछ क्रियाएं हैं। वस्तुओं को जो हम नाम देते हैं, वो नाम किसी न किसी भाषा का कोई शब्द बनता है, और जो घटनाएं घटती हैं वे किसी न किसी भाषा की कोई न कोई क्रियाएं होती हैं। तो भाषा की दोनों संपदाएं, संज्ञा रूप संपदाएं वस्तु की द्योतक हैं, और क्रिया रूप संपदाएं घटनाओं की द्योतक हैं। मेरी मान्यता है, यह हमारी परंपरा की मान्यता है, कि भाषाएं हमें पहचान देती हैं और हमारी पहचान बनती भी हैं। भाषाएं हमें जोड़ती हैं संसार से और पूरे परिदृश्य से। तो नामकरण की जो प्रक्रिया है, भाषाओं के भीतर होने वाली नामकरण की प्रक्रिया, या संसार के भीतर होने वाली नामकरण की प्रक्रिया, वो वस्तुतः भाषाईकरण की प्रक्रिया है। अगर यह प्रक्रिया ठीक तरह से नहीं हो रही है तो बात आगे ठीक तरह से नहीं बढ़ पा रही। आप देखिए कि नामकरण की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि हम जब परिदृश्य में, हम प्रोफेसर अग्निहोत्री जी ने बड़े उदाहरण के साथ इस बात को रखा, हम जिस परिदृश्य में रह रहे हैं या जिस वातावरण में रह रहे हैं या जहां हम रह रहे हैं, उस चारों तरफ का वातावरण जिस भाषा का है, अर्थात घर में हम कोई दूसरी भाषा सीख रहे हैं और शिक्षा की भाषा हमारी कोई दूसरी होती है। तो अनुसंधानों ने यह बात कही कि जब ऐसी स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति बच्चे की सृजनात्मक क्षमता को नष्ट कर देती है, क्योंकि बच्चा केवल रटंत विद्या के नाम पर उस वस्तु के उस नाम को केवल अपने पाठ तक जाने के लिए रटता है, क्योंकि वो जिस परिदृश्य में रह रहा होता है उस वस्तु को वहां तो वह एक दूसरे नाम से प्रयोग में कर रहा होता है। तो बच्चे के ऊपर वो बोझ बनता है, और जब बोझ, शिक्षा बोझ बन जाती है, तो वह जो बच्चे के भीतर रहने वाली स्वाभाविक क्षमता है, उस क्षमता पर आक्रमण होता है, जबकि शिक्षा का काम उस स्वाभाविक क्षमता के उन्नयन का है, न कि उस स्वाभाविक क्षमता के हनन का। तो जब उन्नयन का भाव है तो हम स्वाभाविक, बच्चा जिस परिदृश्य में रह रहा है, कि जिस परिवार में उसने जन्म लिया है, जिस समाज में उसने जन्म लिया है, तो वहां पहले दिन से ही उस भाषा के संस्कार उसके कान में
पढ़ने लगे हैं, तो वे संस्कार जब शिक्षा प्राप्त करने में सहायक बनते हैं तो बच्चा बड़े मनोभाव के साथ उस शिक्षा व्यवस्था के साथ जुड़ता है। अब आप देखिए, अगर हम ऐसा नहीं करते तो होता क्या है कि बच्चा का विकास सहज नहीं हो पाता, तो न शिक्षा समृद्ध होती है न बच्चा समृद्ध होता है। हमारे प्राचीन भारत में दो विषय थे जो जरूर पढ़ाए जाते थे, एक था व्याकरण और दूसरा था गणित। हमारी ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें जो बाल्यावस्था की शिक्षा की बात की गई, अब आप देखिए कि बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी भाषा भी बढ़ती है। तो बच्चे के बढ़ने के साथ साथ उसकी भाषा समृद्ध होती चलती है। अगर ये बच्चे का बढ़ना और भाषा का बढ़ना दोनों समानांतर है, बच्चे का बढ़ना हो रहा हो और भाषा का बढ़ना न हो रहा हो, तो समझ लीजिए कोई ना कोई संकट है वहां। ये बढ़ना कैसे होता है? ये बढ़ना ऐसे होता है कि भाषा में अब तक बच्चे ने जिन वस्तुओं को परिभाषित नहीं किया या जिन वस्तुओं के साथ उसका जुड़ाव नहीं हुआ या जिन वस्तुओं को उसने समझा नहीं, तो वे वस्तुएं उसकी भाषा में परिभाषित नहीं हुई। तो परिभाषित होने का मतलब उस वस्तु के बारे में, उस क्रिया के बारे में जुड़ना और भाषा से उसे जोड़ना, ये काम बच्चा सहज रूप में करता है। यह काम अगर नहीं ठीक से हो रहा है तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक से नहीं चल पा रही। हम देखें कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, इस शिक्षा व्यवस्था में प्रोफेसर अग्निहोत्री जी कह रहे थे, उन्होंने जिस बच्चे का जो उदाहरण दिया, उबोती। अब बच्चा बोती से जुड़ा हुआ है और ऊंट का ऊ बोल रहा है, तो वहां उस तरह के संस्कार हो जाते हैं। तो हो क्या रहा है, आज जो पीढ़ी विद्यालयों में पढ़ रही है, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में, उस पीढ़ी के साथ संकट क्या हो रहा है? संकट यह हो रहा है कि उसे न मातृभाषा आ रही है और अंग्रेजी उस तरह की आ नहीं पा रही, जिसका उन्होंने उदाहरण दिया कि लोग विदेशों में इतने वर्षों से रह रहे हैं पर उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पा रहे। क्यों नहीं मिल पा रहे? क्योंकि वहां वह मूल विचार देने का काम नहीं कर पा रहे। तो विचार सूझते किस भाषा में है, विचार जन्मते किस भाषा में है? ये तो इसीलिए मां, मातृभाषा और मातृभूमि का कोई विकल्प नहीं। जहां जहां विचार है वहां वहां आपकी भाषा पहले है। भाषा के बिना विचार भी नहीं। तो विचार को आकार देने का अगर कोई काम करती है, शब्द देने का कोई काम करती है, तो वह भाषा होती है। तो भाषा नए विचारों की सृष्टा ही नहीं बनती, बल्कि विचारों को रूप देकर उन्हें भाषिक संपदा में व्यक्त करने में क्षम्य बनाती है। यह काम भाषा करती है।
कुल मिलाकर हमारी जो भाषाएं हैं वो बच्चे को और अधिक रचनात्मक बना सके। जब वो और अधिक रचनात्मक, क्योंकि बच्चे, प्रोफेसर अग्रवाल जी ने कहा, बच्चे स्वभाव से क्या होते हैं, एक उम्र होती है जब हम नई नई चीजें खोज रहे होते हैं, तो ये स्वाभाविक क्षमता हर बच्चे में जन्म से होती है। तो नई नई रचने की और नई नई रचनात्मक क्षमता को और अधिक समृद्ध करने की परंपरा बच्चे के साथ होती है। और जब ये परंपरा उन नई नई खोजों की तरफ केंद्रित होती है तो नए नए सृजन होते हैं, नई खोजों का हम नए नए अनुसंधान कर पाते हैं। जब हमारी पूरी ऊर्जा उन शब्दों को रटने में चली जाती है तो हम सहजता से शिक्षा का ग्रहण नहीं कर पाते। इस बात को रेखांकित किया हमारी नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति ने अपनी पीठिका में ही शिक्षक की महत्ता की बात की। अब दो बातें वहां बड़ी महत्व की हैं। एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात, जिस पर हर बच्चे का जो मूल अधिकार होना चाहिए, और दूसरा वह जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो हर बच्चे को प्राप्त होनी चाहिए। पीठिका में हमारे उस परंपरा का उल्लेख भी किया गया कि इस देश में शिक्षा लोक सेवा के रूप में रही है, अर्थात जो अध्यापक था वह लोक के कल्याण के लिए था, पर आज शिक्षा व्यापारिक गतिविधि के रूप में हो गई है। तो पीठिका में बड़ी साफ बात की गई कि सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न लोग इस शिक्षा व्यवस्था के साथ जुड़े। वो कब जुड़ेंगे? जब वास्तव में शिक्षक राष्ट्र निर्माण में एक भूमिका अदा कर सकेगा। तो शिक्षक का मूल कहां? अर्थात शिक्षा में। जब ऐसे बच्चे हम तैयार कर सकेंगे जो देश को एक नहीं अनेक नोबेल पुरस्कार दिला सकें, जो केवल अपने गांव के निर्माण में नहीं, केवल अपने जनपद के निर्माण में नहीं, केवल अपने प्रांत के निर्माण में नहीं, केवल अपने राष्ट्र के निर्माण में नहीं, विश्व के निर्माण में भूमिका निभा सकें राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ, तो नोबेल पुरस्कार अवश्यम भावी है। और वह काम कब होगा? वह काम तब होगा जब वैसे संस्कारों से हम बच्चे को गढ़ पाएंगे, अर्थात भाषा के संस्कार हम बच्चे में। आज का बच्चा, आज आप देखिए, अभी इस वर्ष सुनने में आया कि लगभग 8 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। उत्तर प्रदेश हिंदी प्रदेश, जहां सारे बच्चे हिंदी बोलते हैं पर बच्चे हिंदी में फेल होते हैं। इसका मतलब क्या है? कि हमारा शैक्षिक तंत्र बच्चों को समुचित रूप से हिंदी लिखना नहीं सिखा पाया। तो जो परीक्षा में बच्चे लिख करके आए वो वैसी हिंदी नहीं लिख कर आ पाए जिससे कि वे उत्तीर्ण होते। तो कुल मिलाकर हमारे पास ऐसे अध्यापक भी अब गिने चुने रह गए हैं जिनके भीतर भाषा की बारीकियों के संस्कार हों। तो
अब जब अध्यापकों के पास भाषा की बारीकी का संस्कार नहीं, तो भाषा की बारीकी का संस्कार वे अपने बच्चों में आखिर कैसे दे पाएंगे? संस्कृत में 16 प्रकार के स्वरों की बात की गई। अब उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अनुनासिक और निरनुनासिक, कोई एक स्वर इन 18 भेदों के साथ उच्चरित करने वाले आज अध्यापक देश में विरल हैं। तो हो क्या रहा है? हम अपनी भाषाओं से भी कट रहे हैं और दूसरी भाषा हम सीख नहीं पा रहे हैं। भाषाओं से कट रहे हैं, भाषाओं के जानपद रूप से भी कट रहे हैं, अर्थात उनकी बोलियों से भी हम कटते जा रहे हैं। तो ये परिणाम हमें कहां ले जा रहा है? ये परिणाम हमें ले जा रहा है, एक आंकड़े से मैं बात करके इस व्याख्यान के उत्तरार्ध की तरफ चलूंगा, क्योंकि एक एक बिंदु को लेकर अगर मैं बात करूंगा तो एक बड़ी लंबी चर्चा होगी। एक आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह मुद्रा का आंकड़ा है। हम राजनीतिक रूप से तो आजाद हुए, पर आर्थिक रूप में हम दिनों दिन परतंत्र होते जा रहे हैं। आप इस स्लाइड को देख रहे होंगे। 1913 में हम एक अमेरिकन डॉलर हमारे 9 पैसे के बराबर था। 1925 में वह डॉलर 10 पैसे के बराबर। 1947 में 4 रुपए 16 पैसे के बराबर। और 1984 में जब पहली बार मैं अमेरिका में गया तो वह डॉलर 8 रुपए कुछ पैसे के बराबर। और अब जब 2019 में मैं गया तो वह डॉलर 20 में 2000 वह डॉलर 77 रुपए का बराबर। क्यों? यह इसलिए कि 2 कारण। एक तो हम भारतीय ज्ञान से दूर होते चले गए। दूसरा, हमने जो शिक्षा पाई उससे हम नए अनुसंधान से दूर होते चले गए। हम जब 1913 में 9 पैसे के बराबर एक डॉलर था, उससे और पीछे जाएं तो दुनिया का सबसे अच्छा इस्पात हम बनाते थे, दुनिया की सबसे अच्छी मलमल हम बनाते थे, दुनिया के सबसे अच्छे मसाले हम पैदा करते थे जो पूरे यूरोप में जाते थे। अब हुआ क्या कि हम आर्थिक रूप से परतंत्र होते चले गए और दिनों दिन हम राजनीतिक आजाद तो हुए, पर आज भी हम डॉलर के सामने परतंत्र हैं। तो हम शैक्षिक परतंत्र ही नहीं, हम आर्थिक परतंत्र भी हैं। ये आजादी, भाषा की आजादी हमें शैक्षिक आजादी ही और ले जाती है। और ये आजादी, हमने एक सर्वे किया पूरे देश में 5 स्थानों पर, लगभग 500 घरों में ये सर्वे किया। उस सर्वे के कुछ परिणाम आपको बताना चाहते हैं। सर्वे जो किया वो परिणाम आता है, बच्चों से पूछा गया कि तुमको किस भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है, अंग्रेजी में पढ़ना अच्छा लगता है या अपनी मातृभाषा में पढ़ना अच्छा लगता है। ये सर्वे केवल हिंदी क्षेत्र का नहीं, पूरे तमिल का है, तेलुगु का है, कन्नड़ का है, उड़िया का है, बांग्ला का है, पूरे देश से ये सर्वे है। तो बच्चा कहता है कि मातृभाषा में पढ़ना अच्छा लगता है। उड़िया भाषी भी कहता है, बांग्ला भाषी भी कहता है, तमिल भाषी भी कहता है, तेलुगु भाषी भी कहता है। क्यों? क्योंकि हमें विषय समझ में आता है। वो कहता है पढ़ने में सरलता होती है। वो कहता है विषय समझ में आता है, इसलिए विषय पर आधारित मैं प्रयोग भी कर पाता हूं।
कुछ उस प्रयोग जो पहले से सिद्ध प्रयोग है उससे आगे जाकर कुछ और नया रच पाता हूं, अर्थात प्रयोग को आगे समृद्ध कर पाता हूं। तो हमने कहा कि फिर हमें मातृभाषा के विद्यालयों में हम सरकारें चला रही हैं, पर आप वहां पढ़ने क्यों नहीं जाते? उनके अभिभावकों से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं और हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी मातृभाषा की पढ़ाई की पाठ्य पुस्तकें उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की अंग्रेजी में उपलब्ध है। मातृभाषा के विद्यालयों के शिक्षक भी उस स्तर से प्रशिक्षित नहीं है जिस तरह से अंग्रेजी में है। मातृभाषा के विद्यालयों के शिक्षक अंग्रेजी शिक्षक से अपने को कुछ कमतर मानते हैं, कुछ लुंज पुंज सा मानते हैं, उन्हें कुछ कम सुविधाएं भी प्राप्त हैं और कहीं कहीं जो निजी विद्यालयों में पढ़ाते हैं उन्हें निश्चित रूप से वेतन भी कम मिलता है। हमारी मातृभाषा के विद्यालयों का रखरखाव भी अच्छा नहीं है और उनमें छात्रों का और अध्यापकों का प्रशासन भी ठीक से नहीं। मातृभाषा के विद्यालयों में सुविधाएं भी उस तरह की नहीं है और अंततः अगर मातृभाषा के विद्यालयों में हम पढ़ते हैं तो हमें काम भी नहीं। इसलिए हम अपने बच्चे को मातृभाषा के विद्यालय में पढ़ाएंगे नहीं। अब जरा विचार करिए, पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं तो क्या पाठ्य पुस्तकें नई अंग्रेजी से बेहतर नहीं लिखी जा सकती? लिखी जा सकती। क्या शिक्षकों को तैयार नहीं किया जा सकता? तैयार किया जा सकता है। इनमें कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं किया जा सकता है। और बाजार भी अंग्रेजी मातृभाषियों की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से बहुत कम है, शायद आधी भी नहीं। भारत की जनसंख्या, बाजार भी हम हैं। तो पर हम अपनी बाजार की शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए वो तो आकर नूडल बेच ले जा रहे हैं, वो ब्रेड बेच ले रहे हैं। हम जो हमारे घर में 50 प्रकार की सब्जियां माताएं बहनें बनाती हैं और अनेक प्रकार की रोटियां, पूड़ियां, कचौड़ियां हम बनाते हैं, उनकी जो पौष्टिक गुणवत्ता है आज की समझ की भाषा में हम उसे प्रस्तुत नहीं कर पाए आहार विज्ञान की आज की भाषा में, इसलिए हम उन्हें नहीं बेच पा रहे। तो जरूरत इस बात की है कि भारत में निहित जो बहुविध ज्ञान है उस बहुविध ज्ञान का संस्कार हम अपने बच्चे को दें और वह संस्कार खेल खेल में तमाम सारे घरों के व्यंजनों के बनाने में, उन जिन जो परिदृश्य में जो हम खेल हमारे खेले जाते हैं, हम उन खेलों से दूर होते चले जा रहे हैं। तो भारत की परंपराएं, खेल की परंपरा, आहार की परंपरा, वस्त्र आभूषण की परंपरा, उत्सवों की परंपरा, इस परंपरा को जो सांस्कृतिक समृद्धि है, उस सांस्कृतिक समृद्धि के खरीदार भी आज हैं जो भारत के बाहर, भारत के मूल के बच्चे हैं। उन बच्चों को वे भारतीय लोग भारत में भेजकर पढ़ाने को तैयार हैं, पर हम ऐसा एक विश्वविद्यालय नहीं बना पाए, एक ऐसा विद्यालय भी नहीं बना पाए जहां प्राथमिक स्तर पर जो एनआरआई हैं वो अपने बच्चों को भेज करके पढ़ा सकें। खर्चे पैसे का संकट नहीं है।
मुझे साल में 2 बार अमेरिका जाने का योग बनता है और उस योग में निरंतर हमारे पास वे संसाधन, मैं 2 उदाहरण और देकर के बात पूरी करूंगा। एक विश्व भारती शांति निकेतन का उदाहरण। शांति निकेतन में जो बच्चे पढ़ते हैं वहां विद्यालयीन शिक्षा भी शांति निकेतन का अंग है। जो बच्चे वहां पढ़कर जाते हैं वहां माध्यमिक तक का हर विद्यार्थी 15 से 20,000 रुपए प्रति माह कमाने की क्षमता वाला होकर निकलता है, ये देश में और अन्यत्र नहीं। मध्य प्रदेश में आचार्य विद्यासागर जी ने कुछ प्रतिभा स्थलियां खोली, हिंदी, रातों रात उसे अंग्रेजी माध्यम से हिंदी माध्यम में बदल दिया। आज वहां एक प्रवेश के लिए लगभग 50 छात्राएं आवेदन करती हैं और उन्हें प्रवेश नहीं मिलता। तो जरूरत, क्योंकि वहां से पढ़कर जो छात्राएं तैयार हो रही हैं वे सृजनात्मक हो रही हैं, आर्थिक रूप में स्वावलंबी हो रही हैं, क्योंकि वे कोई ना कोई एक विद्या, कोई ना कोई एक शिल्प, कोई ना कोई एक कला सीख कर निकल रही। तो ये सारी व्यवस्था, हमारी नई शिक्षा नीति समृद्ध भारत का सपना देख रही है और वह सपना अगर पूरा होगा तो ठीक ढंग से हम विद्यालयीन शिक्षा गढ़ पाएंगे, जो सपना नई शिक्षा नीति में देखा गया। एक एक बिंदु को लेकर अब वहां एक अंतिम बात कह के मैं बात पूरी करूंगा। जहां भाषाओं की आजादी की बात की गई, वह नई शिक्षा नीति एक और भाषाओं की आजादी की बात करती है और दूसरी ओर उसे पनपने नहीं देने की बात भी करती है। अर्थात वो कहती है कि जहां व्यवस्था हो सके वहां, इससे सारी व्यवस्था को वो तोड़ती भी है, अर्थात पुरानी व्यवस्था को चलने देने का विकल्प भी देती है। मैं बड़ी साफ बात कहता हूं, एक एक बिंदु को लेकर, जो भाषा के संबंध में बिंदु कहे गए हैं, एक एक बिंदु को लेकर अगर बात करेंगे तो बहुत लंबी बात होगी, पर एक एक बिंदु अब वहां कहते हैं। दूसरी तरफ ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान क्या कर रहे हैं? ये प्रावधान कर रहे हैं कि जहां तक संभव हो, हमने सारे प्रावधान किए कि 5वीं तक 8वीं तक हम भारतीय भाषाओं को स्थापित करने की बात की गई, पर फिर हमने कह दिया जहां तक संभव। तो कुल मिलाकर अगर प्रबंध तंत्र नहीं चाहता है तो बात फिर 0 की 0। सरकारें नहीं चाहती हैं तो बात फिर 0 की 0। ये सारी बातें, तो इसलिए नई शिक्षा नीति के आने के बाद हमें केवल पाठ सामग्री ही सजग रहकर तैयार नहीं करनी है, हमें शिक्षकों को भी तैयार करना है और ऐसे विद्यालयों को भी हमें तैयार करना है। और जब हम ऐसे विद्यालय हम तैयार कर सकेंगे तो हम निश्चित रूप से समृद्ध भारत का, गुणवत्तापूर्ण भारत का और वास्तव में स्वतंत्र भारत का निर्माण कर सकेंगे। आंगनबाड़ियों को भी और तमाम सारी जिन संस्थाओं की वहां बात की गई है, एक एक को लेकर के फिर अलग से कभी बात होगी तो बात करेंगे कि हम वह कैसे कर सकेंगे। उस एक एक बिंदु को लेकर, भाषा को एक एक बिंदु को लेकर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम विश्व गुरु ही नहीं, बल्कि हम जो आज जो डॉलर हमारा नियामक बन रहा है, अर्थात विश्व की मुद्रा का नियामक बन रहा है, शायद ही नहीं निश्चित रूप से रुपया विश्व की मुद्राओं का नियामक हो सकेगा यदि हम फिर से भारत में निहित संस्कृत, पाली
प्राकृत और अपभ्रंश की परंपरा में पल्लवित ज्ञान को आधुनिक भाषाओं की समृद्धि के साथ, कन्नड़ की समृद्धि के साथ, तमिल की समृद्धि के साथ, बांग्ला की समृद्धि के साथ, उड़िया की समृद्धि के साथ हम स्कूली स्तर पर ही प्रावधान करते हुए चलेंगे और भारतीय भाषाओं की एकात्मता की बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और भाषाओं में निहित वैज्ञानिक तत्व को सामने लाकर, पर ऐसी जिस तरह की बात शिक्षा नीति में की गई, वे सारी सामग्री आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो हमें उसके लिए व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण करके और जो जिस एनआरएफ की बात की गई उस एनआरएफ के माध्यम से ऐसा अनुसंधान का रूप करके, और ये काम हो तब पाएगा जब एक भाषा, इस भाषा के प्रावधानों को लागू कराए जाने के लिए हम राष्ट्रीय स्तर पर एक 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 भाषा आयोग जैसा कोई आयोग स्थापित करें। वह अगर नहीं करेंगे तो ये केवल प्रावधान होकर रह जाएंगे। सही मायने में भारतीय भाषाएं शिक्षा में उतर पाना उनके लिए मुश्किल होगा। भारतीय भाषाएं हमारी विद्यालयीन शिक्षा का अंग बनेगी तो निश्चित रूप से हम समृद्ध होंगे, हमारी परंपरा समृद्ध होगी, हमारा उत्तराधिकार समृद्ध होगा और हम सही मायने में आजाद भारत के नागरिक बन सकेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप चाहेंगे इसी लॉकडाउन के बीच में इस मातृभाषा के महत्व की दृष्टि से एक अभी हमने पुस्तक संपादित की है। ये लगभग 100 पेज की पुस्तक है और आर्ट पेपर पर प्रकाशित है और बहुत सारे तर्कों की बात इसमें की गई है जो 35 रुपए में उपलब्ध है इस पुस्तक में। और वर्तनी आदि को, भाषा की शुद्धि आदि को लेकर के हमें सामग्री कैसे करना चाहिए, हमें लगता है हमें 5 काम करने की जरूरत है। बहुत सारे प्रावधान संस्कृत और साथी भाषाओं को लेकर के हमने ओलंपियाड की बात नहीं की, हमारी नीति में ओलंपियाड के आयोजित करने की बात भी हमें करनी चाहिए। हमें जिन विषयों का वहां उल्लेख है, उन विषयों में पिछड़े क्षेत्रों के लिए हमें जिन विषयों का उल्लेख है वहां संस्कृत को छोड़ दिया गया है, वहां संस्कृत की बात भी हमें करनी चाहिए। हमें सबसे पहले समस्त भारतीय भाषाओं की जनपदीय रूपों को संग्रहित करना चाहिए, क्योंकि उनको बिना संग्रहित किए हुए हम बच्चों के पाठ्यक्रम, पाठ सामग्री हम तैयार नहीं कर सकेंगे। हमें उस रूप को संग्रहित करने के लिए कुछ व्यक्तियों को तैयार भी करना चाहिए ताकि वे उच्चरित, जिस तरह से भाषाएं बोली जा रही हैं, उस उच्चरित रूप को संरक्षित करते हुए उनकी उस भाषिक सामग्री का हम संग्रहण कर सकें और उन रूपों के आधार पर पाठ विकसित करने चाहिए और उन पाठों को समुचित रूप से पढ़ाया जा सके। इस दृष्टि से अध्यापकों का प्रशिक्षण किया जाना चाहिए और फिर उनका शिक्षण प्रशिक्षण आगे बच्चों के साथ चल सके। ऐसी कुछ संस्थाएं, अगर एक एक राज्य में एक विद्यालय भी हम अंग्रेजी विद्यालय से अच्छा स्थापित कर सके तो निश्चित रूप से हमारी भारतीय भाषाएं फिर से स्थापित होंगी और तब हम सही मायने में समृद्ध भारत को गढ़ सकेंगे। और इसे करने के लिए हमें केंद्र और राज्य के स्तर पर भी कुछ आयोग जैसे बनाने चाहिए, अन्यथा ये जो अंग्रेजी तंत्र है वो हमारी इन भाषाओं को स्थापित नहीं होने देगा। हम बात करते रह जाएंगे पर स्थापित होना मुश्किल होगा। तो हमें आयोग की तरफ बढ़ना चाहिए और यदि ऐसा हो सका तो निश्चित रूप से हम जो हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारी सरकार का सपना है उसे हम रूप दे सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं विद्या भारती का, आप सब विद्वज्जनों का, कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं कुछ बातें आपसे कह सका, बहुत विस्तार से किया जा पाना संभव नहीं था, इसलिए बहुत सारी बातें मैं स्पष्ट न भी कर सका हूं, तो मुझे आप छोटा भाई मानकर क्षमा करेंगे। पर
मुझे लगता है कि बिना भारतीय भाषाओं की समृद्धि के भारत की समृद्धि संभव नहीं, और बिना उस भारतीय भाषाओं की समृद्धि के भारतीय शिक्षा की समृद्धि का सपना भी देखा नहीं जा सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद ऋषभ जैन जी। Thank you very much for that wonderful explanation, and you have really given us food for thought to think about so many aspects. You have touched on so many aspects related to language, and we realize that it is very essential and it is the need of the hour to really transform the minds of the Indian people. They should be study in their mother tongue. That is the main role or main job which we need to do. But before I proceed, I think we are short of time, but we are going to have this interactive session. And I request the participants to please ask questions. You can ask questions in Hindi, English, and I am familiar with, I am a Maharashtrian, so you can ask in Marathi also. जो भी भाषा में आप प्रश्न पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए या आप अनम्यूट करके आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं अग्निहोत्री जी अगर होंगे तो उन्हें भी मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ और हमारे दोनों ही महाभाग प्रश्नों के उत्तर देंगे। So I request the participants to kindly ask your questions. There are so many questions which might have cropped up in your mind. So please raise your hands or unmute yourself and ask question. Yes. Namaste, ma'am. Ji. I am Susmita Mohapatra, science teacher in Odisha. मैम जैसे हमारे स्कूल में 5-6 लैंग्वेज की बच्चे पढ़ रहे हैं, ओडिया और बिहारी भी पढ़ रहे हैं, पंजाबी, मुस्लिम भी है, बिहारी भी है। तो इसी सिचुएशन में कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज को प्राधान्य दिया जाए, और क्वेश्चन पेपर जो आए या 5-6 भाषा में आएगा क्या? हाँ वृषभ जी। May I respond to this question? Yes. Yeah, fine. हमारी बहन ने उड़िया से सवाल किया कि हमारे बच्चे कई भाषाओं में पढ़ रहे हैं। अब देखिए, उस विद्यालय में अनेक भाषाओं के पढ़ने की और पढ़ाए जाने की व्यवस्था है। अगर वहां ऑनलाइन पढ़ाई जाने की व्यवस्था है तो मुझे लगता है कि प्रश्न पत्र सभी भाषाओं में दिए जा सकते हैं। क्योंकि विद्यालय उड़ीसा में है तो वहां की स्थानीय भाषा उड़िया है, और उड़िया जो उड़ीसा की भाषा जो उड़िया है, तो उड़िया का जो ज्ञान शास्त्र है उड़ीसा का, वो तो उड़िया में ही है। तो वहां की जो राजभाषा है वो सार्वजनिक विद्यालयों की भाषा होनी चाहिए। इसलिए वहां प्रमुखतः प्रश्न पत्र उड़िया में बनना चाहिए और उसके उत्तर भी उड़िया में ही दिए जाने चाहिए। और उड़िया ज्ञान संपदा को आज की समझ की डिजिटल शब्दावली में अनुदित करने के ही पाठ सामग्री बननी चाहिए और उसी से जुड़े हुए प्रश्न पत्र भी बनने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और दिस इज पॉसिबल इन द मॉडर्न सिस्टम ऑफ द टेक्नोलॉजी। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। बोलिए मैडम। क्लियर नहीं हुआ क्योंकि ज्यादातर हमारा उड़िया मीडियम है, लेकिन हिंदी मैक्सिमम 50% बिहारी और नन उड़िया बच्चे हैं।
तो उसी समय हम भी बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं, हम पढ़ाने के टाइम में भी मुश्किल में पड़ जाते हैं, और 5-6 लैंग्वेज में तो हम भी नहीं पढ़ा सकते हैं, और वो तो उनकी मातृभाषा में शिक्षा नहीं कर सकते हैं, माने हम तो पढ़ा ही नहीं सकते हैं, तो वो शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे? हाँ, अब आपने व्यावहारिक सवाल, आपने आपका पहला वाला सवाल इतना स्पष्ट नहीं था। जो आपका दूसरा सवाल था, इसने बहुत सारी बातें साफ की। पहली बात यह आपने साफ की कि आपके यहां आधे बच्चे हिंदी क्षेत्र के हैं। तो विद्यालय के प्रबंधन तंत्र को क्या चाहिए? प्रबंधन तंत्र को चाहिए कि उड़िया के साथ साथ हिंदी के अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था भी करे, जबकि 50% बच्चे अगर हिंदी क्षेत्र के हैं तो। अन्य भाषाओं के अगर बच्चे कम हैं तो उनके जो अन्य राज्य हैं उनसे जुड़कर ऑनलाइन पाठ्यक्रम, अर्थात बांग्ला को पढ़ाए जाने के लिए, पंजाबी को पढ़ाए जाने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने चाहिए। और कुछ विषय, क्योंकि बच्चे उड़ीसा में रह रहे हैं और कम उम्र के बच्चे हैं, छोटी कक्षाओं के बच्चे हैं, तो उन बच्चों में ये क्षमता होती है कि वे कई भाषाएं सीख सकें, तो वो उड़िया भी सीखें, पर उनको ये सुविधा भी मिलनी चाहिए कि वो पंजाबी भी मदर टंग के रूप में वो अपनी पंजाबी को भी समृद्ध कर सके। पर पंजाबी को समृद्ध करने की अगर मान लीजिए 2 ही बच्चे हैं तो प्रबंधन तंत्र कैसे व्यवस्था करेगा? विद्यालय का नहीं कर सकेगा। तो उसको पंजाब सरकार के साथ जुड़कर कुछ ऑनलाइन प्रशिक्षण की बात करनी चाहिए। आप चाहेंगे तो हम वहां से बात करके ऐसी कुछ व्यवस्था के बनाने में कुछ सहयोग कर सकेंगे। ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकेगी, क्योंकि पंजाबी शिक्षा बोर्ड के साथ हम जुड़े हुए हैं और हम ऐसी कोई व्यवस्था बना सकते हैं। आपको जिन जिन तरह के अध्यापकों की आवश्यकता है उन तरह के, तो एक कक्षा उन भाषाओं की लगाई जा सकती है, दूरस्थ शिक्षा के मोड में और ऑनलाइन शिक्षा के मोड में, और उस तरह की उन विषयों की परीक्षा भी वहां की जा सकती है। पर वहां की जो मुख्य परीक्षा उड़िया मीडियम की है तो वह उड़िया माध्यम से ही होनी चाहिए, क्योंकि वो उड़ीसा का राजकीय वित्त पोषित विद्यालय है वहां। धन्यवाद सर जी। और यहाँ पर डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा जी पूछ रहे हैं, उन्होंने ये प्रश्न अग्निहोत्री जी से किया है कि बेसिक आइडियाज कम ओनली इन द मदर टंग, ऐसा अग्निहोत्री जी ने कहा। तो इफ चिल्ड्रन विल नॉट लर्न अदर लैंग्वेजेस then how can they be connected to the world? The NEP also has a multilingual approach. Please clarify. अग्निहोत्री जी हैं? मुझे ऐसे लगता है सर नहीं है शायद, तो मैं ऋषभ जी से निवेदन किया। जी 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 डॉक्टर अनिल कुमार जी, what I am to speak on this question, आपको हिंदी समझ में आएगी या अंग्रेजी में बोलूं? अनिल जी बताएं। अनिल जी, would you willing to hear me in English or in हिंदी? जी नमस्कार, मैं हिंदी में ही समझ सकता हूँ। और आभार आभार आभार। मैं हिंदी में भी समझ सकता हूँ, बोलिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, जी। आपका सवाल ये है कि अगर हम केवल अपनी भाषाओं से जोड़ेंगे तो बच्चे विश्व से कैसे जोड़ेंगे? एक सवाल। हमारी एनईपी में ये व्यवस्था दी गई है कि कक्षा 6 से 12 के बीच में, खास करके 11वीं और 12वीं में, विश्व की जो भारत की अतिरिक्त भाषाएं हैं उनके पढ़ने की व्यवस्था की जाए। तो वहां 10वीं तक तो भारत की भाषाओं से जुड़ने की बात है। क्यों भारत की भाषाओं से जुड़ने की बात है? क्योंकि पहले हम भारतीय हैं, पहले हम जो सृजनात्मक क्षमता है, वह सृजनात्मक क्षमता धीरे धीरे
कम होती जाती है। तो उस सृजनात्मक क्षमता पर विदेशी ज्ञान का और विदेशी भाषा का दबाव इतना न हो जाए क्या कि वह सृजनात्मक क्षमता प्रस्फुटित होने से रह जाए। इस बात की चिंता एनईपी कर रही है, और इस चिंता के साथ अगर हम बढ़ते हैं तो भारतीय ज्ञान कोश हमें इतने अधिक विचार देगा, इतनी अधिक कल्पनाओं के बिंदु देगा, इतने अधिक विज्ञान के स्रोत देगा, जो हम नई नई उद्भावनाएं कर सकेंगे। विश्व को जानने की जरूरत क्यों है? ताकि हम विश्व की ज्ञान संपदा को भी जान सके और विश्व की जरूरतों को भी जान सके, ताकि उन जरूरतों को अगर हम भारतवासी पूरा करते हैं तो उनकी मुद्रा को हम भारत की ओर ला सकेंगे, और ऐसा लाना भारत की आर्थिक समृद्धि का स्रोत बनेगा। पर यह काम 11वीं और 12वीं में होना चाहिए। यह काम कक्षा हम 1 से अगर करने लग जाएंगे तो फिर यह काम, और ये हम कर रहे थे, इसीलिए जैसा प्रोफेसर अग्निहोत्री ने कहा भी कि हमको हमारे विश्वविद्यालय संसार के विश्वविद्यालयों में कहीं खड़े नहीं हैं, हमारा अनुसंधान संसार के अनुसंधानों में खड़ा नहीं है, क्योंकि हम वैश्विक भाषाओं में और अंग्रेजी में खास करके इतना अधिक हमने परोसा कि हम अपनी भाषाओं को ही भूल गए। तो अपनी भाषाओं को जानते हुए हमें अंग्रेजी से परहेज नहीं है। हम अंग्रेजी को अंग्रेजी वालों से बेहतर जानना चाहते हैं, पर अपनी भाषा की कीमत पर नहीं। अपनी भाषाओं, अपनी अस्मिता को बचाकर हम उनकी भाषा से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम विश्व को बंधु के रूप में देखते हैं। विश्व एक नीडम और विश्व बंधुत्व का नारा हमने दिया है। मैं समझता हूं आपके प्रश्न का कुछ उत्तर मैं दे सका हूं। मंजू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, धन्यवाद ऋषभ जी। यस, द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। ऋषभ जी, मैं एक पूछना चाहती हूँ कि हम जब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में कौन से 3 लैंग्वेजेस होगी? क्योंकि हिंदी के बारे में स्पष्टता से उल्लेख नहीं है एनईपी में। कोई भी 2 भारतीय भाषा हम चुन सकते हैं। तो क्या ये विद्यार्थियों के लिए चॉइस होगा, या फिर वो इंस्टीट्यूशन में जो चॉइस होता है उसके मुताबिक हमें 2 लैंग्वेजेस चूज करनी पड़ेगी? तो हमारा ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कैसे होगा? असल में ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का जो सवाल है, उसे बहुत सारे लोगों ने राजनीति के साथ घेर भी दिया है जी। उस राजनीति को अगर हम फिर से उठाएंगे तो हम भटक जाएंगे जी। हमारे लिए अच्छा क्या है? हमारे लिए अच्छा यह है कि हमें 3 भाषाओं में 2 भारतीय भाषाएं, ताकि भारत का संस्कार हमारे साथ बंधा रहे। तो ये 3 में से 2 भारतीय भाषाएं और 1 विदेशी भाषा, इस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे तो हम, और ये बात छात्र के ऊपर और संस्था के ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि वो इसका उल्लंघन न करे। तो ऐसा हम करेंगे तो हमें लगता है कि हम बहुत सारे विवादों से बच सकेंगे। काफी सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि अगर हम अंग्रेजी में नहीं पढ़ेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए उतनी ही अवेलेबल रहेंगी क्या, जितनी हम मातृभाषा में अगर पढ़ने के बाद हमें उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि आजकल सब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है,
तो ग्लोबलाइजेशन के लिए तो हम लोग देखते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ हैं, तो ऐसे में अंग्रेजी का चयन लोग करना चाहते हैं, तो इन्हें अगर हम मन परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल लोगों के लिए करना चाहिए, तो ही हम ये साध्य कर सकेंगे, ऐसे मुझे लगता है। जी आप इस पर क्या? जी, दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। आपका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है डॉक्टर मंजूश्री जी, वास्तविकता ये है कि विदेशी व्यक्ति आपके पास आता क्यों है? वो आता इसलिए है कि वो आपके यहाँ के उत्पाद को पसंद करता है। बाजार, आपके पास जॉब क्यों पैदा होंगे? जॉब पैदा तब होंगे जब आप ऐसे उत्पाद बाजार में बेच सकें। ये क्षमता आपके भीतर होनी चाहिए, न कि केवल ये क्षमता। अगर आप भाषा के साथ जुड़े रहेंगे तो देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं। फिर IIM लखनऊ के साथ हमने एक वर्कशॉप की आज से लगभग 18 वर्ष पहले। उस वर्कशॉप का खेल ये था कि IIM जब खड़ा हुआ तो वहां का जो पास आउट बच्चा था, जितने पैसे में बिकता था, अर्थात वार्षिक उसे जो धन मिलता था, और 2001 में जब हमने वर्कशॉप की, उस समय रुपया की जिस दर से वृद्धि हुई वेतनों की, उस दृष्टि से उसे IIM के बच्चे को वो पैसा नहीं मिलता। अर्थात अगर 10,000 रुपए उसको IIM अगर 2090 में बनता है और 2010 में 1990 से और 2010 में उस रुपए की कीमत बढ़ जाती है, तो जो रुपए की कीमत, वेतन की कीमत जिस तरह से बढ़ी, उस तरह से उत्पाद अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप नहीं बिक पा रहे हैं और आपके पास आपकी भाषाओं में नौकरियां नहीं आएंगी। आप अपने उत्पाद को विश्व स्तर का बना पाए और प्रतिबद्ध हो जाएं। छोटे छोटे से देश, कोरिया, अब आप एक उदाहरण देकर के अंतिम बात पूरी कर दूंगा। कोरिया से एक बच्चा अमेरिका में जाता है और एक बच्चा हिंदुस्तान से IIT से बीटेक करके जाता है, और जब अमेरिका में जाता है तो उसको 25 से 30,000 डॉलर ए ईयर का जॉब मिलता है। अब वो जो कोरिया से करके जाता है तो उसको 40,000 से 50,000 डॉलर का जॉब मिलता है। क्यों? और वहां जो कोरिया से पढ़ के जाता है उसने सब कुछ कोरियन मीडियम से पढ़ा है, और कोरिया की आबादी आपके नागपुर से कम। तो क्यों? क्योंकि कोरिया से जो बच्चा पढ़ के जाता है, उसने बीटेक एमटेक तक जो पढ़ा है, वो भारतीय बच्चे से 40% कम समय में सॉफ्टवेयर का निर्माण कर लेता है, क्योंकि उसने सब कुछ, वो सीधे कोरियन से कंप्यूटर की भाषा में चला जाता है। हमारा बच्चा अगर मराठी वाला है तो उसने IIT से पढ़ा है, तो पहले वो अंग्रेजी में जाता है, फिर अंग्रेजी से वो कंप्यूटर की भाषा में जाता है, तो उसको जो बाजार में कीमत है, वो मल्टीनेशनल्स उसको 30,000 डॉलर से अधिक में नहीं खरीदते। तो मतलब क्या हुआ? मतलब साफ हुआ कि बाजार, आप कितने अधिक प्रोडक्टिव हैं, इस पर बाजार निर्भर करता है। बाजार इस पर निर्भर नहीं करता कि आपने किस भाषा के माध्यम से आपने पढ़ा है। अगर इस पर ही निर्भर करता होता तो दोनों की डिग्रियां समान, आपकी भी बीटेक डिग्री और कोरिया की भी बीटेक डिग्री, उनके बीटेक वाले को 40,000 डॉलर क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो अधिक कम समय में अधिक उत्पाद कर पा रहा है, और आपका बच्चा उतने समय में उतना उत्पाद नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो उतने अधिक पैसे में नहीं बिक पा रहा है। तो ये तथ्य हमें करना क्या पड़ेगा? हमें करना ये पड़ेगा, अन्यथा ये विद्यालय और भारतीय भाषाएं स्थापित नहीं हो पाएंगी। भारतीय भाषाएं स्थापित तब हो पाएंगी जब ये जो आंकड़े हैं, उत्पादों से जुड़े हुए आंकड़े, हम वैश्विक जरूरतों के उत्पाद उत्तम से उत्तमतर कैसे भारतीय मेधा बना सकेगी। अगर ये बना सकेगी तो हमें नौकरियां
पैदा होंगी, एक नहीं 1,00,000 नौकरियां, 1,00,000 नहीं करोड़ों नौकरियां पैदा होंगी। और भारत के, और नौकरियों की शायद जरूरत भी नहीं पैदा होगी, हम करोड़ों उद्यमियों को पैदा कर सकेंगे, जो हमारा हम लोक कल्याण भी कर सकेंगे। केवल पैसे के लिए नहीं, पैसा भी अर्जित कर सकेंगे। और अंततः चूंकि हमारी शिक्षा मोक्ष को ले जाने वाली शिक्षा है, तो लोक कल्याण की बात भी हम कर सकेंगे। मुझे नहीं लगता कि मेरे एक भी विद्यार्थी को आजीविका का और नौकरी का संकट नहीं है, जबकि वो भाषाओं का, जबकि किसी भी बीटेक और एमटेक वाले बच्चे को आज जो अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजेस के जो बच्चे हैं बीटेक, उनको 10,000 रुपए की नौकरी नहीं मिल रही। हमारे बच्चे 15,000 से और 20,000 25,000 तुरंत वो पास आउट करके निकलते नहीं है, बीए में पढ़ रहे होते हैं और उनको 15,000 की नौकरी मिलती है, क्योंकि वो अनुवाद बहुत अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्रोग्राम लिख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा कोई ना कोई उत्पाद बना लेते हैं। तो जरूरत इसकी है कि कितने अधिक उपयोगी हम बन पा रहे हैं और कितने अधिक काम के हम बन पा रहे हैं। अगर विश्व के काम के, अपने जनपद के काम के केवल उपाधि हमारी किताबी होकर अगर रहेगी, जो आज है, हमें उन किताबी उपाधियों को विसर्जित करना होगा और नई सृजनात्मक उपाधियों को विश्वविद्यालयों में स्थापित करना होगा। पर विश्वविद्यालयों में स्थापित करने की बात तो दूर, अभी सबसे पहले उनका सूत्रपात विद्यालयों से, मैंने तो उदाहरण दिया आपको, प्रतिभा स्तरीय का उदाहरण दिया और शांतिनिकेतन का उदाहरण दिया, हमें उनका अध्ययन करना चाहिए और उनके अध्ययन के आधार पर एक एक महानगर में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से बेहतर स्कूल अपने उद्योगपतियों को जोड़कर विद्यालय खड़े करने चाहिए। और ये जब प्रतिमान के रूप में खड़े होंगे तो देश में एक बार फिर से भारतीय भाषाओं और भारतीय ज्ञान केंद्रित समाज का निर्माण हम कर सकेंगे। यह करना असंभव नहीं है। बात केवल इतनी है कि अध्यापक, छात्र, उद्योगपति, समाज सेवी सब मिलकर मन से संकल्प ले लें और 50-100 लोग भी खड़े हो गए तो एक बार फिर से हम स्वतंत्र भारत को रच सकेंगे, गढ़ सकेंगे और उसके निर्माण की ओर बढ़ सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। मैडम नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। विजय कुमार मोहंती जी बोलिए। विजय कुमार मोहंती फ्रॉम ओडिशा। Okay. What sir said, that's really a fact, it's true. And in the long run, this dream will be successful. But into the mind of most of the Indians, this question comes whether it will be successful or not. It's a fact. Yeah, this is fact. You see, sir was talking about the internet teaching. So far as the education system in Odisha is concerned, I would like to say that teaching through internet is really not so much successful in Odisha during this lockdown. Most of the students don't have these mobiles, and there are certain other reasons. Most of the teachers are also not conversant with this system. That's why through internet teaching different languages is really difficult, and now it is become not so much possible. It is one thing. Another thing is that so far as the higher education is concerned, sir was talking about Oriya, but most of the, I think almost all the higher educations, maybe medical, engineering, diploma, etc., and even graduation and post-graduation, the books are published in English. Where these books will be published in our tongue, I think this stream will be successful. How long it will take, that I cannot say. Sir can say. This is my question. So how long we will have to wait? And what will be the present situation? What will you do now?
Thank you, Vijay ji. Rishabh, sir will answer your question. Okay. Firstly, what we can do, Rome, perhaps you have heard a proverb, Rome cannot be built in a day. Yeah. So the proverb clearly depicts that when we are planning to create a dream India, dream Bharat. Because why dream Bharat? That had been a successful Bharat, but now we are not living with that Bharat. So that Bharat is to be created. If we will keep on dreaming only, then that will never happen. So to make it happen, we have to start. The student who is taking admission today in 1st to 12 classes. So who has taken admission in 1st class, he will need to go to a higher education system in Odia after 12 years. So in this mean period, we shall create the books better than English. Okay. Only then, so I don't think that there is being any kind of delay. But only thing is, since independence, we have not started. If we want to be rich in real sense, that can only happen when we start from someday. So why don't we start from today? Okay. If we start from today, possibly what will happen? अब थोड़ी देर के लिए आप लीजिए कि जैसे उड़ीसा की जो औषधियों की संपदा है, मीन्स द प्रॉपर्टी रिलेटेड विद मेडिसिनल प्लांट्स और मेडिसिनल थिंग्स, अगर उसे ही हम स्टोर कर लें तो एक बड़ा, और उनमें से कुछ को भी हम पेटेंट करा पाए तो हमारी आधी से अधिक जो शिक्षा व्यवस्था है दैट विल बी डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली. तो वो उसके लिए संसाधन भी हमारे पास आते जाएंगे. समस्या क्या हो रही है, कोई साहस नहीं कर पा रहा है. वी शुड कम विद ए फीलिंग दैट वी हैव टू बिल्ड इंडिया. व्हाट इज हैपनिंग? We say that Bharat may be built, but others may build the Bharat, then we shall start living in that Bharat. That will never happen. If we want to live in a prosperous Bharat, then we have to build ourselves. No one else will build. If they are coming, NEP में एक प्रोविजन और किया गया कि ये जो नए विश्वविद्यालय बाहर के आ रहे हैं, अगर ये आपके ज्ञान को, औषधीय ज्ञान को, आपकी जरूरतों की आवश्यकता को, उस पर स्टडी करके अगर उन्होंने पाठ्यक्रम विकसित कर लिए, तो ये हमारे विश्वविद्यालय अगले 20 साल में 2030 जिसकी बात की जा रही है, 2030 और 2040 में ये सारे विश्वविद्यालय बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास हमारे ज्ञान पर कब्जा उनका होगा. इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने लोक में, आम जनता में व्याप्त जो ज्ञान सामग्री है उसे संग्रहित करें और उस ज्ञान सामग्री पर आधारित पाठ्यक्रम विकसित करें. ये हम प्रारंभ करें. अभी कुछ 5 कक्षाओं के लिए करें तो 5 साल का काम हो गया, फिर 8 कक्षाओं के लिए करें. तो ये काम हमें करना पड़ेगा. और इसके लिए सबसे पहले अध्यापकों को और सबसे पहले समाज सेवियों को, कुछ लोगों को तैयार करना पड़ेगा. और ये जैसे ही तैयार हो गए, एक विद्यालय भी, आप अपने नगर में एक विद्यालय प्रारंभ कर लीजिए और उस विद्यालय में सुविधाएं अंग्रेजी विद्यालय से आप थोड़ी अधिक दे दीजिए. ये जनता तो लट्टू की तरह घूमती है. और लोग मेरे पास
समय नहीं रहता है मेरे पास। मुझसे बात करने के लिए जिन लोगों के फोन कॉल होते हैं अमेरिका से, इतने फोन कॉल आते हैं, 3 महीने बाद मैं समय दे पाता हूं बात करने का। मेरे पास समय नहीं है। तो 3 महीने बाद जब मैं समय दे पा रहा हूं अमेरिकन नागरिक को, तो और जितना पैसा चाहूं उतना पैसा, मैं कहूं कि 1 घंटे बात करने के मुझे $100 चाहिए, तो $100 देने को लोग तैयार है। तो सवाल यह है कि आप अपने ज्ञान को उस रूप में बेचना तो चालू करें, उस रूप में लोक कल्याण के लिए उसका उपयोग करना तो चालू करें। ये हम नहीं कर रहे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मोहंती जी जिस नगर में रहते हो उसी नगर में एक विद्यालय खड़ा करने का संकल्प ले लीजिए। कुछ उद्योगपतियों को हम अमेरिका से दे देंगे आपको, जो 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 उड़ीसा में समृद्धि की बात करेंगे, है ना। मतलब ढूंढेंगे अपन, है नहीं मेरे पास कोई जेब में, ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे, है ना। तो ऐसा एक विद्यालय, क्योंकि अब लोग केवल पैसा यहां आपको दान, ऐसा दान जो समृद्धि न कर सके, ऐसा दान देने को अमेरिकन भी, अब बाहर के लोग भी तैयार नहीं है। आपकी समृद्धि देखना चाहते हैं, बच्चे को बढ़ता देखना चाहते हैं, वे बच्चे को समृद्ध होते देखना चाहते हैं। वे आपका बिना काम का वो बीटेक करके निकल रहा है और 10,000 रुपए की उसे नौकरी नहीं मिल रहा है, तो उसके बीटेक की फीस देने को तैयार नहीं है। वो क्यों फीस देकर क्या करेंगे जब ये नॉन प्रोडक्टिव से होना है। तो हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो हमारे गांव के निर्माण में, हमारे नगर के निर्माण में, हमारे जनपद के निर्माण में, जैसा मैंने कहा, राष्ट्र के निर्माण में, हमारे प्रांत के निर्माण में, और विश्व के आसपास के देशों की जरूरतों को हम देखें, उन्हें जरूरतें क्या हैं, उनके लिए क्या हम अपने देश से कुछ उत्पाद पैदा करके उन्हें हम क्या भेज सकते हैं, वहां क्या हम बेच सकते हैं। हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा। तब तक मजबूत होने वाला नहीं। मोदी जी अकेले बेचारे लाख चाहें, होगा नहीं। जब तक आम जनता, और ये काम हमारे बौद्धिक संगठनों को करना चाहिए, और ये हम नहीं करेंगे, केवल बौद्धिक संगठन सरकार की हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तो भी काम चलने वाला नहीं। तो हमें बौद्धिक संगठनों को भी जागृत होना पड़ेगा। तो जागृत होकर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, उसमें यद्यपि बहुत सारी चीजें, अंग्रेजी को स्थापित करने की बात भी कही गई है, उनको धीरे से हम नजरअंदाज, हम बंद कमरे में आज बात कर रहे हैं विद्या भारती के, इसलिए इतनी बात साफ कह रहे हैं, तो हम उनको धीरे से जहां जहां संभव हो वाले फ्रेज को हम थोड़ा अनदेखा कर दें, जो संभव है उसे करना चालू कर दें, तो अपने आप रिडंडेंट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा पद, है ना। तो हम राष्ट्रीय निर्माण कर ले जाएंगे। मोदी जी आए जब यूजीसी के सामने, 1 घंटे उन्होंने कहा सरकार आपके साथ, देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो शिक्षा के लिए चिंतित होकर के 1 घंटे आपके सामने खड़ा रहा। तो जब प्रधानमंत्री आपके साथ खड़ा है, खुले मन से खड़ा है, तो मुझे लगता है कि हम राष्ट्र निर्माण में अब भी अगर यत्न नहीं करेंगे, हमारी सारी संस्थाएं, और विद्या भारती तो बहुत बड़े बड़े काम करती है, तो विद्या भारती तो निश्चित रूप से करेगी। तो आप सब लोग, हम लोग मिलकर के भारतीय भाषाओं का, भारतीय ज्ञान पर आधारित पहले भारत को बनाने का, फिर आसपास के देशों को बनाने का, और फिर विश्व निर्माण का संकल्प लें। ये संकल्प ही नीति का संकल्प है, और यह संकल्प ही भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प है। मैं समझता हूं आई कुड रेस्पॉन्ड सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ माय फ्रेंड विजय कुमार मोहंती जी। Thank you, sir. And one last question. This is from Sri Lakshmi ji, and she wants to know. She says, "I wish to know that is there any special section in NEP about implementing Sanskrit language in school education?" There is no such independent mention. That is only in 4.17, and there are some mentions in 22 point something. No specific mention, but there should be.
because without implementation, on the basis of the knowledge base of Sanskrit, I don't think we can build a better India, a better Bharat. So there should be, we have to make suggest such things to the government to make such provisions for implementation. And I think it is 5 o'clock, and we will stop here. And that was indeed a very fruitful session. Both the speakers have thrown light on various aspects of the role of language in school education, and this would really prove helpful in the implementation of the new Education Policy 2020. I would like to express my gratitude to Honorable Dr. Rishabh Jain, sir, for accepting our invitation and expressing his valuable opinion on the role of language. I am also grateful to Dr. Kuldeepji Agnihotri for his insights and suggestions on the topic. Thank you, sir, for sparing your valuable time and being with us. I would also like to thank the support team, Lal Krishna ji, Anurag ji, and their team for the technical support. Last but not the least, I would like to thank the participants for the wonderful interaction, and we were able to reap a lot of benefits from this academic deliberation. Thank you, sir. It was great talking to you. Thank you very much. Thank you. Namaskar. Namaskar.